بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس نے ناقدرانہ نظروں سے ایک مرتبہ پھر لانچ کا جائزہ لیا۔ اس کی 3 گھنٹوں کی مسلسل محنت سے کسی حد تک وہ لانچ نظر آ رہا تھا۔ ابھی اسے اپنے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم کی سیٹنگ بھی چینج کرنا تھی۔ وہ آج دوپہر کو کراچی پہنچی تھی۔ ازمیر پہلے سے ان کی سیٹس کنفرم کروا چکا تھا۔ لاہور سے کراچی تک کا سفر گرچہ اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن یہاں پہنچتے سے کوفت بیزاری کا سامنا کرنا پڑا۔ ازمیر تو اسے بتا رہا تھا کہ تمہارے والے پورشن کی مکمل سیٹنگ ہو چکی ہے۔ اس کی بات اسے خاصی حد تک پرسکون کر گئی۔ اس کا ارادہ تو آتے بستر پر گر جانے کا تھا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے اپنا گھر چھوڑنے کے غم میں وہ ڈھنگ سے سو بھی نہیں سکی تھی، اور کل سے تو مسلسل ہو رہی تھی۔ اوپر سے سفر کی تھکان بھی کچھ شامل ہو گئی تھی۔ پھپھو وغیرہ سے مل کر جب وہ باما کے ہمراہ اوپر آئی تو اس کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ سیٹنگ کے نام پر سارے گھر میں جو ادھم مچا ہوا تھا، اسے دیکھ کر اس کا دل ابنے لگا۔ کہاں وہ اتنی نفیس طبیعت کی مالک اور کہاں اس گھر کے ہر کمرے میں سامان تقریباً ٹھوسا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ جادو کی چھڑی گھما کے ہر چیز کو ترتیب سے رکھتے۔ اوپر سے اس کے پھپھو اور اہل خانہ اتنے بے مربت اور بد اخلاق تھے کہ ایک مرتبہ بھی اوپر آنے کی زحمت نہیں کی۔ البتہ اتنی ہمدردی ضرور جتائی کہ ایک عدد ملازمہ کو بھیج دیا اور ڈوب کے کو تنکے کا سہارا کے مصداق مزاج نے اس کے ہمراہ سب سے پہلے ماما کا بیڈ روم سیٹ کیا، فضول چیزوں کا نکال باہر کیا۔ پھر لاؤنج کی باری آئی۔ وہ مشکل اس کی سیٹنگ کر پائی تھی کہ نیند اور تھکاوٹ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ ملازمہ بھی اس کی حالت دیکھ کر فوراً نیچے کھسک گئی۔ ماما مسلسل اسے ڈانٹ رہی تھی کہ سب کل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی فطرت کا کیا کرتی جو اتنی بے ترتیبی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ارے تیری OCD ہیں۔ تھکن سے نڈھال ہوتے وجود سمیت وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا یہیں ٹانگیں پسار کے سو جائے۔ مزاج چائے پی لو، ماما کی آواز پر اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ او مائی گریٹ موم! اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ ان کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولی، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ ابھی یہ سب رہنے دو، لیکن تم میں تو کوئی دھن سوار ہو جائے تو پھر اسے پورا کر کے چین لیتی ہو۔ وہ ابھی بھی خفکی سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی پورا کہاں ہوا ماما، خود کو فریش ظاہر کر رہی ہوں کرنے کی خاطر وہ لہجے میں حت المکان بشاشت سے منہ کر بولی۔ اس سے پہلے کہ ماما کچھ کہتی، لاؤنج کا دروازہ کھول کر ندا اور مہک اندر داخل ہوئی۔ واہ بھائی، مزاج کے تو انٹیریئر ڈیزائنر ہونا چاہیے تھا۔ مہک نے توصیفی نظروں سے اٹ کٹ کے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ جواب میں صرف مسکرائی سکی۔ بیٹھو بیٹا، میں چائے لے کر آتی ہوں، ماما اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں ممانی، رہنے دے پھر کبھی سے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں تو مزاج کو لینے آئی تھی۔ ندا کی بات پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری ایک بہت اچھی دوست ہے، ان کے گھر آج گیٹ ٹوگیدر، یہیں قریب ہی ان کا گھر، میں نے سوچا تمہیں بھی لے چلوں، تمہاری بھی تفریح ہو جائے گی۔ ہاں تو انہوں نے بطور خاص غزل کا پروگرام بھی رکھا ہے، غزلوں کا لائیو پروگرام تو تم ہرگز مس نہیں کرو گی، اور اسی بہانے تمہارا سب سے تعارف بھی ہو جائے گا۔ مزاج جو قدر حیرانی سے ندا کو دیکھ رہی تھی، اس کی آخری بات پر اس کی الجھن رفع ہو گئی۔ وہ یقیناً اسے اپنے ساتھ لے جا کر سب سے اس کا تعارف کروانا چاہتی، ورنہ اسے گھر میں گیٹ ٹوگیدر ارینج کرنا پڑتی۔ خواہمخواہ کے جھنجھٹ ان لوگوں نے پال رکھے ہیں، اس نے سخت کوفت سے سوچا۔ وہ ندا کی فطرت تو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے ندا، لیکن آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے نیند بھی بہت آ رہی ہے، اب تو میں ادھر ہی ہوں، پھر کبھی۔ طبیعت کو چھوڑو، تمہیں فریش کرنے کے لیے تو لے کر جا رہی ہوں، نیند کے لیے تو ابھی ساری رات پڑی ہے، تم بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ اگلے بندے نے دیکھنا نہیں کہ کیا سڑے آیا سفر دی تھکان تے اگوں بھی مسئلے مسائل تے کرنی، چلو جو کہہ دیتا تے حدیث ہوگی نا۔ اس کی بات کاٹ کر اپنی ہی کہتے وہ باہر نکل گئی۔ مزاج نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو 8 بجا رہی تھی۔ میں نہیں جا رہی، اس نے جنجلا کر کپ ٹیبل پر پٹکا۔ چلی جاؤ بیٹا، وہ اتنے خلوص سے تمہیں لینے آئی تھی، ماما نے حسب عادت اس کی تائید کی تھی، جس پر مزاج کو مزید غصہ آ گیا تھا۔ جی ہاں، خلوص تو میں دیکھ رہی تھی، کھڑے کھڑے دعوت دے کر چلے گی وہ جلدی میں، ندا بتا تو رہی تھی۔ ماما شروع سے ہی پھپھو اور ان کی اولاد کی فیور کرتی آئی تھی، اور اس بات سے مزاج کو اچھی خاصی چڑ تھی۔ جانتی ہوں میں اس کی جلدی کو، ابھی 2 گھنٹے وہ تیار ہونے میں صرف کرے گی، بڑبڑاتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ ماما سے بحث کرنا ابیس ہی تھا، ندا کے حق میں ان کے پاس اور بھی دلیلیں ہوتی تھی، لہٰذا وہ اٹھ کر نہانے چلتی، شاید اس طرح تھکاوٹ اور نیند کسی حد تک زائل ہو ہی جائے۔ دیکھو کی بند فنکشن کی ارینجمنٹ لان میں کی گئی تھی، جسے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ جس بات کو مزاج نے سب سے زیادہ پسند کیا وہ لائٹنگ کا انتظام تھا۔ چکا چوند روشنی کی بجائے مدھم مدھم لائٹس ماحول کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ رومانٹک بھی بنا رہی تھی۔ مستعد ویٹر ادھر ادھر سروس دینے میں مصروف تھے، رنگین لہراتے آنچل نسوانی کہکے اور آنکھوں کو گھیرا کرنے والا حسن جا بجا بکھرا ہوا تھا۔ ندا بلیک ساڑی کے ہمراہ وکٹورین اینٹیک جیولری اور ڈارک میک اپ کے ساتھ نہایت دلکش نظر آ رہی تھی، اور کہیں سے بھی مزاج سے 3 سال بڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ مزاج کا ذاتی خیال تھا۔ مہک نے بھی براؤن کلر کا اسٹائلش سے سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں خاصی نکسک سے تیار ہوئی تھی، جبکہ مزاج کو اپنا آپ awkward ہی لگ رہا تھا۔ وہ اگرچہ سر جھاڑ منہ پہاڑ تو نہیں آئی، لیکن غصے میں اس کے ہاتھ جو بھی سوٹ لگا اسے پہن لے، بالوں کو زبردستی گویا جوڑے کی شکل دی تھی، اور احتجاجاً چند لٹے احتراب سے نکل کر اب اس کے چہرے پر دائیں بائیں چھوڑ رہی تھی۔ نیچرل کلر کی لپسٹک لگانے کے بعد وہ کسی بھی قسم کی جیولری سے مبرہ بالکل تیار تھی۔
निदा और महक अब अपने जानने वालों से इसका तारुफ करवा रही थी। मिज़ाब का तो बुरा हाल हो रहा था। अब तो इसे शदीद सर में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। वो दबे लफ्ज़ों में 1-2 बार वापसी का कह चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया गया। इसने अज़मीर की तलाश में इधर-उधर निगाह दौड़ाई, लेकिन मायूसी हुई, उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। असल मेहमान तो अब आए हैं। निदा न जाने कब अब किस पर बारी सदके जा रही थी। मिज़ाब ने बेज़ारी से इसे देखा। वो कम से कम हर किसी से ऐसी लगावट का मुज़ाहरा नहीं कर सकती थी। निदा भी इशारे से बुला रही थी। आंटी, ये मेरी कज़न है मिज़ाब, आज ही लाहौर से आई, और मिज़ाब ये हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, हमारे घर के बिल्कुल सामने वाला घर इनका है। मिज़ाब ने बमुश्किल इनसे रस्मी सलाम दुआ की थी। अलबत्ता ये फैमिली से सबसे डिसेंट लगी। इससे पहले कि निदा बाकियों का इंट्रोडक्शन करवाती, महक इसे आवाज़ें देने लगी तो एक्सक्यूज़ करती हुई इसकी तरफ बढ़ गई। ये मेरी बहू है लाइबा, और ये मेरा शरारती पोता हमज़ा। अभी आफ़त की पर काला माह हम घर में, और ये मेरा लाइक-फ़ाइक बेटा हंसल है। वो आंटी अब खुद अपनी फैमिली का तारुफ करवा रही थी। इनके तारुफ पर मिज़ाब ने बेहद हैरान होकर सर ऊपर उठाया। लाइबा तो खैर ठीक थी, देखने से अंदाज़ा हो जाता था कि वो मैरिड है। इसकी आँखें लेकिन इसके बराबर में खड़ा लड़का बिल्कुल यंग था। ब्लू जीन्स पर लाइट ब्लू शर्ट पहने, सलीके से जमे बालों समेत वो नहायत शानदार शख्स कहीं से भी 2 बच्चों का बाप नहीं लग रहा था। इसकी नज़रों के मुसलसल इर्तिकाज़ को महसूस करके हंसला ने नज़र घुमाकर इसकी जानिब देखा। वो इसे देख रही थी। निगाहों के बाहम तसादम पर इसने गड़बड़ाकर फ़ौरन निगाहें झुका लीं। जबकि मुकाबिल के होठों पर मद्धम सी मुस्कुराहट उभर के मासूम हो गई। लाइबा ने मशकूक नज़रों से इसकी मुस्कुराहट को देखा। इससे पहले कि वो लोग मज़ीद कोई बात करते, गज़लों का प्रोग्राम शुरू हो गया। तमाम लोग नशिस्तों की तरफ बढ़ने लगे। मिज़ाब ने अपने लिए काफ़ी पीछे रखी कुर्सियों में से एक मुंतखब की। इस तरफ रोशनी भी आगे की निस्बत कुछ कम थी। मध्यम रोशनी और मध्यम म्यूज़िक में मिज़ाब ने अपना सर चेयर की पुश्त टिका दिया। गुलूकार अपनी खूबसूरत आवाज़ में जादू बखेर रहा था। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। इसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। थकावट काली बार थी या माहौल ही ज़्यादा असरअंदाज हो रहा था। वो रिलैक्स होने के से अंदाज में चेयर पर बैठी थी, बायां बाजू आंखों पर रख लिया। वैसे भी सब लोगों का ध्यान स्टेज की तरफ था। आखिरी रो में शायद कोई बैठा भी नहीं था। इसका ख्याल यही था, इस तरफ कौन सा किसी का ध्यान जाता है। गुलूकार की आवाज़ अब भी माहौल में तिलिस्म बखेरी थी, लेकिन इसकी आंखें बंद हो चुकी थी। अल्फाज गड़बड़ हो रहे थे। चेयर की पुष्ट पर इसका ढलकता हुआ सर दाएं तरफ से किसी मजबूत सी चीज पर टिक गया। हंसला, जो अपने ध्यान में गुज़ल के बोलों में गुम था, एकदम चौंक गया। वो जो मोहतरमा भी थी नहायत इस्तेहकाक से इसके कंधे पर सर रख के गायकी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। माँ सदके जावे, उंदे ते सिर रख के बह गई। और हंसला इसकी बहादुरी पर अश कर उठा। वो लड़कियों से पीछे छुड़ाने की खातिर तो आखिरी रो में बैठा था। इससे पहले कि वो इसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते, इसे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो सो रही है। इसने नज़र घुमाकर इसके चेहरे की तरफ देखा तो एक पल के लिए हैरान रह गया। वो निदा की कज़न में ज़ाब थी, जो कुछ देर पहले हैरान नज़रों से इसे तक रही थी। अब इसके कंधे पर सर रखे महव इस्तराहत थी। सही है भाई, सही है। फिर कई लोग नज़र से गुज़रे, फिर कोई शहर तुरब याद आ गया। इसका ध्यान अब बँट रहा था, आधा ध्यान स्टेज की तरफ था, तो आधा ध्यान अपने बाएँ पहलू की तरफ। इसके बालों से उठती शैम्पू की दिलफ़रेब महक इसे डिस्टर्ब कर रही थी। बावजूद कोशिश के भी वो इसका सर अपने कंधे से नहीं उठा सका। माँ सदके चली जावे, ओनू की चाहिए सी अंगंदा क्या चाहे 2 आँखें। हाले दिल हम भी सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। मोबाइल की तेज़ बीप ने जहाँ इसे चौंकाया, वहीं वो भी कसमस आई थी। आँखें खोलकर इसने सामने देखा, जहाँ भी गज़ल जारी थी। यस, हंसला स्पीकिंग, इसके बेहद करीब से आवाज़ उभरी। लाशऊर से शाउट तक का सफ़र इसने चंद सेकंड्स में तय किया और एक झटके से अपना सर उठाया। इसके बराबर वाली सीट पर हंसला बिराजमान था। मिज़ाब को एकदम ही ढेरों खजालत और ख़िफ़्फ़त ने आ घेरा। क्या मैं इसके कंधे पर सर रखकर सोती रही हूँ? इसका बस नहीं चल रहा था कि एक सेकंड में यहाँ से गायब हो जाए। ना जाने वो इसे कैसी लड़की समझता होगा। फ़ोन ऑफ करके हंसला ने एक नज़र इसकी ख़िफ़्फ़त ज़रा चेहरे पर डाली। खुद को कुछ कहने से बमुश्किल पास रखते हुए वहाँ से खड़ा हो गया, तो मिज़ाब का रुका हुआ साँस बहाल हुआ। अल्लाह अल्लाह करते हुए प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो घर पहुँचे। सोते वक़्त जो ही इसने सर तकिए पर रखकर दायाँ बाजू तकिए के ऊपर फैलाया, इसके ज़हन में एक ज़बरदस्त छमाका हुआ। क्या मैंने इस शख्स के कंधे पर भी यूँ ही बाजू फैलाया हुआ था? इसकी गर्दन के गिर वो आगे सोचना भी नहीं चाह रही थी। वो शुरू से इसी स्टाइल में सोती थी। माँ सदके चली जावे फिर ते। सही है भाई, सही मौजा करा के भेजियां होंदियां। और आज इस तरह इसका बुरा हाल हुआ था, इसे अपने आप से हर किस्म की बेवकूफ़ी की तवक्का थी। अगर इसकी बीवी देख लेती तो मेरे बारे में क्या राय कायम करती? एक और सोच। मुझे इसे अपनी हरकत पे एक्सक्यूज़ करना चाहिए। इन्हीं बातों को सोचते-सोचते वो कब नींद की वादी में उतरी, इसे खुद खबर नहीं हुई। एडी क्यों मरी मुकी सोनी है। हमज़ा, इस दूध का ग्लास आपको ख़त्म करके उठना है। 5 साला हमज़ा ने, जो अपनी मामा से नज़र बचा के दूध का ग्लास एक साइड पे रखने लगा था, मुँह बसोड़ते हुए इसे दोबारा पकड़ लिया। वो सब इस वक़्त नाश्ते की टेबल पर जमा थे। मामा, कल आप निदा की कज़िन मिज़ाब से मिली थी, कितनी डिफरेंट है वो निदा और महक वग़ैरह से। मौज़ूअ गुफ्तगू अब रात की पार्टी की तरफ मुड़ गया। लाइबा अपनी सास फसीहा से मुखातिब थी। वो शक्ल से सादा और मासूम सी लग रही थी। अपनी सादगी के बावजूद वो अपनी कज़िन से खूबसूरत नज़र आ रही थी। फसीहा ने भी इसकी तायद की। माशाअल्लाह, इस सादा और मासूम लड़की का कारनामा आपको पता चल जाए तो आप लम्हों से कबल अपनी राय बदल लें। हंज़ला ने चाय का सिप लेते हुए सोचा। इसके कंधे पर अभी तक वो लमस जाग रहा था, शायद सो रहा था। लेकिन मुझे कल इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। देखा था कैसे सुस्त-सुस्त सी लग रही थी। लाइबा ने दोबारा इज़हारे ख़्याल किया। हाँ, महसूस तो मुझे भी हो रहा था, फसीहा ने सर हिलाते हुए कहा। तुम किधर गुम हो? लाइबा ने इसकी आँखों के सामने हाथ लहराया, तो वो एकदम चौंक उठा।
मैं सोच रहा था कि सास और बहू में फूट कैसे डलवाऊं। इसने शरारत से लाइबा की जानिब देखा। एक तो तुम हर वक्त जलते रहते हो हमारी मोहब्बत से। जब अपनी बीवी आएगी ना तब पता चलेगा। लाइबा ने खफकी से इसकी तरफ देखा, फिर फसीहा से मुखातिब हुई, मामा मेरा ख्याल है अब हंसला की शादी कर दे, ये लड़का हाथों से निकलता जा रहा है। लाइबा की बात पर हंसला का हाथ बेख्तियार अपने सर की तरफ बढ़ गया। ये वाहद मौजूद था जिससे वो कतराता था। क्यों भाई, तू क्यों कतराना है? आपको शादी करवाने का बहुत शौक है। इसने अपनी पुरसोच नजर लाइबा पर जमाई। हाँ तो और क्या, वो जोश से बोली। तो फिर ऐसा करे, अपने शौहर नामदार एसपी हाशिम हारून अहमद की दूसरी शादी करवा दे, मेरी जान भी छूट जाएगी और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। अपनी उमड़ती हुई मुस्कुराहट को मुश्किल कंट्रोल करते हुए कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। पता ना छितर ने हंजला, मामा ने सख्तन भी नजरों से देखा। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे मामा, इतना जबरदस्त तो आइडिया। वो हंसते हुए ने देखने लगा, फिर हमजा की तरफ मतवज्जा हुआ। आज जो पार्टनर, देर हो रही है। हमजा ने दूध का ग्लास छट से टेबल पर रखा और लपक कर चाचू की तरफ बढ़ा। मुबादा दूध ना पीना पड़ जाए। और दूध का ग्लास यूं का तू देखकर लाइबा अपना सर पकड़ के बैठ गई। हेलो ओ चाचा सी, जिन्हों अब्बा समझी जा रही बीबी। कहाँ जा रही हो? वो सीढ़ियां उतर कर जो ही नीचे ही सबसे पहले अजमीर से सामना हुआ। न जाने क्यों इसे अपने इस कजन से शुरू से चिढ़ थी, बल्कि अपनी पुप्पो का सारा घराना इसे बनावटी सा लगा करता। लेकिन काश कि कभी ये बात मामा को समझा सकती। नजदीक ही एक पार्क है, बस वहीं तक जा रही हूँ। इसने रुककर इसे जवाब दिया। मैं छोड़ा था। मैंने इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसकी बेबाक निगाहों से मिजाब को उलझन होने लगी। शुक्रिया, मैं चली जाती हूँ, करीबी तो जाना है। वो नॉर्मल लहजे में बोली। कभी खादिम को भी खिदमत का मौका दे दिया करो। इसके बाएं गाल को आहिस्ती से छूते वो साइड पर हो गया तो मिजाब सुलग कर रह गई। तेज तेज कदमों से चलते इसने गेट क्रॉस किया। अरे मिजाब तुम, लाइबा से देखते खुश दिली से बोली। इसे भी खुशगवार हैरत हुई। कैसी हैं आप? वो इसके पास ही बेंच पर बैठ गई। पार्क में ज्यादा रश नहीं था। फाइन, तुम तो इस दिन के बाद नजर ही नहीं आई। मैं समझी शायद तुम वापस चली गई हो। मैं नहीं, वापस कहाँ, अब हम मुस्तकिल यहीं शिफ्ट हो गए। वो मुस्कुराई। हम यानी कि पूरी फैमिली? लाइबा ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। दरअसल 1.5 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मैं और मामा अकेले रह गए थे। फुप्पो और अंकल बहुत जोर लगाते थे कि हम भी यहाँ आ जाए, इधर ही आ जाए, क्योंकि मेरे पापा और फुप्पो दो ही बहन भाई थे, लिहाजा वो चाहते थे कि अब हम इकट्ठे रह लें। लेकिन मेरी स्टडी की वजह से मामा को रुकना पड़ा और जून में मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, हम यहाँ आ गए। मिर्जा ने सारी तफसील बताई। मैं और मामा अक्सर तुम्हारा जिक्र करते। चलो अच्छी बात है, अब तुम यहाँ रहोगी तो खूब गपशप रहेगी। लाइबा ने दानिस्ता मौजू बदला। चलो अब वापसी पर तुम्हें मामा से मिलवाऊंगी। चंद इधर उधर की बातें करने के बाद लाइबा खड़ी होगी। फिर कभी से वो हिचकिचाई, अगर इनका शौहर घर हुआ तो। फॉर्मेलिटी को छोड़ो यार, अब तो इकट्ठे रहना है, आना जाना लगा रहेगा। लाइबा ने बेतकल्फी से इसका हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया। मेरा पुतल आ गया है, शिकंजे से भज के आया ना। लाइबा ने बेतकल्फी से इसका हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया। ना चार तो ना चारे से चलना पड़ा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शौहर घर पे होते हैं? बातों के दौरान बिलाकर इसने पूछ लिया। नहीं, वो तो एसपी है, अक्सर और बेशतर शहर से बाहर ही आते हैं। आजकल भी वो एक जरूरी केस के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हुए। जी जी जी। लाइबा की बात सुनकर से काफी तसल्ली हुई। लाइबा की सास फसीहा आंटी बहुत लाइबा की सास फसीहा आंटी बहुत मुशफ़क़तून थी। मिज़ाब को बहुत पसंद आई। खुद लाइबा भी काफ़ी फ्रैंकली तबीयत की थी। हमज़ा इतना शरारती था कि मुसलसल इसे हँसाया जा रहा था। यहाँ आकर वक़्त गुज़रने का एहसास इसे बिल्कुल नहीं हुआ। मिज़ाब आंटी, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है? हमज़ा अंदर से सीढ़ी लाया था, वो इसके सामने खड़ा पूछ रहा था। बस अभी तुम्हें किसी ना किसी काम पे लगा देगा। लाइबा मुस्कुराते हुए खड़ी होगी। बिल्कुल आता है, इसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मैं बड़ी फैंटास्टिक मूवी लेकर आया हूँ। आज चाचू के कमरे में चलकर देखते हैं, इनका कंप्यूटर बिल्कुल परफेक्ट है। हमजा की बात में सोच में पड़ गई थी। यूं किसी के घर में इतनी मदाखलत इसे पसंद नहीं थी। फिर इसका चाचू ना जाने किस मूड का इंसान था। वैसे इसका बाप इतना यंग था तो लाजमी बात ही चाचू साहब भी कोई इतने बड़े नहीं होंगे। उठ भी जाए मिजाब आंटी, हमजा ने दोबारा इशरार किया। हमजा, तुम्हारे चाचू को अगर वो फिर भी हिचकिचा रही थी। चाचू घर में नहीं आते, वो रात को आते हैं। वो उसकी बात काट के बोला। चली जाओ मिज़ाब, वरना ये ज़िद्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा, बल्कि महम को भी ले जाओ। मैं तब तक ज़रा किचन देख लूँ। लाइबा भी हमज़ा की मामा थी। महम को इसकी गोद में डालकर खुद किचन की तरफ बढ़ गई। फसीहा आंटी शायद पहले किसी काम से अंदर जा चुकी थी। हमज़ा के हमरा जब अंदर दाखिल हुई तो दाद दिए बिना नहीं रह सकी। कमरे का इंटीरियर, कलर स्कीम, डेकोरेशन, हर चीज़ ज़बरदस्त थी। हमज़ा को उसकी मतलूबा सीटी लगा कर देने के बाद इसने महम को बेड पर बिठाया, 2-4 चीज़ें उठाकर सामने रख दी। वो पूरी तवज्जो से इनसे खेलने लगी। हमज़ा मूवी देखने में मुनहमिक था। शायद वो ये भूल चुका था कि मूवी से मिज़ाब को भी दिखानी है। मिज़ाब की नज़र एक बुक रैक पर पड़ी, जहाँ तकरीबन हर किस्म की बुक्स नज़र आती। तो मौसूफ़ खासे बाज़ुक मालूम होते हैं। इसने भी एक सफ़रनामा निकाली और इसकी बरगर्दानी करने लगी। इसी वक़्त कमरे का दरवाज़ा खुला और हंसला अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते एक लम्हे के लिए तो वो पहुँच कर रह गया। इसे ऐसे लग रहा था जैसे इसने 6-7 साल बाद अपने कमरे में कदम रखा, क्योंकि अंदर एक खालिस घरेलू माहौल इसका मुंतज़िर था। बेड पर पूरी तमकनत से बैठी लड़की से देखकर बुरी तरह छटपटाई। किताब छूटकर हाथ से नीचे जा गिरी। आप? वो फ़क़त इतना ही कह पाई। या अल्लाह! क्या मैं इस शख़्स के सामने शर्मिंदा ही होती रहूँगी? जी, मैं वो इसी के अंदाज़ में बोला। इसकी आवाज़ों से हमज़ा का तसलसल भी टूटा।
वो बेचारा भी बौखला कर खड़ा हो गया, इसके गुस्से से भी वाकिफ था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे कमरे में आप किसकी इजाज़त से तशरीफ़ लाई हैं? वो लफ़ज़ चबा-चबा कर बोला, आपका कमरा? वो हैरान हुई, लेकिन ये तो हमज़ा के चाचू का कमरा है। मिज़ाब आंटी, यही मेरे चाचू हैं। हमज़ा ने इसके करीब आकर दबे लहज़े में कहा, हैं? वो मज़ीद हैरान होकर इसे देखने लगी। मैं तो समझती थी कि आपके पापा हैं। गैर इख्तियारी तौर पर ये जुमला इसकी ज़ुबान से फिसला था। क्या? हमज़ा के साथ-साथ वो भी उछला। मैं आपको 2 बच्चों का बाप नज़र आता हूँ? सदमे से इसकी आवाज़ फटने के करीब हो गई। नहीं भाई, तेरा सदमा जायज़ है। आई एम सॉरी। वो सर झुका के, काश कि ज़मीन फटते हुए इसमें समा जाती। अपनी सारी ज़िंदगी में इसे कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी जितनी इस शख्स से 2 मुलाकातों में हुई थी। वो वाक़ई हद से ज़्यादा बेवकूफ़ थी। इसका झुका हुआ सर देख के हंसला का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। अब इसके लबों पर मत्थम मुस्कुराहट थी। हमज़ा तो मौका पाते खिसक गया। आप अगर इसी रफ्तार से शर्मिंदा रहीं तो एक दिन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएँगी। इसका मुस्कुराता हुआ लहज़ा इसके कानों से टकराया। वो जो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी, एकदम ही सर उठाकर इसे देखने लगी। तो गहरी मुतबस्सम निगाहें इसी पर मुर्तकज़ थी। वो फ़ौरन से पेशतर निगाहें झुका के हंज़ला ने दिलचस्पी से इसकी हरकत नोट की थी। एकाएक इस कमरे में खड़ी हुई इसे अच्छी लगने लगी थी। देखो हंज़ला, मैंने मिज़ाब और हमज़ा को तुम्हारे कमरे में भेजा था। लाइबा ने अंदर आते फ़ौरन सफाई पेश की। वो अपने देवर के मिजाज की गर्मी से वाकिफ़ थी। बात पे बात इसके गुस्से का करार पड़ जाता था। गालिबन हमज़ा ही से रिपोर्ट पहुँचाया था, जब भी फ़ौरन आ गई। लेकिन ये क्या, ना तो नाक पे गुस्सा थरा था, ना ही माथे पे बल। बोल उन्हें कित्थे माथे ते बल आने। ना ही घूरती हुई निगाहें। इसके बरक्स एक मुलायम सा तासुर इसके चेहरे पर था। मैंने कब मना किया कि मत भेजें? एनीवे इनसे पूछ लें, क्या मुस्तकिल यहीं ठहरने का इरादा है? शरारत से कहता वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। वो जो मुसलसल बेड के किनारे एक ही ज़ाविये पर खड़ी थी, जज़्बज़ होके बाहर की तरफ बढ़ गई। तुम माइंड मत करना इसकी बातों को। लाइबा इसके पीछे चली आई थी माहम को उठाकर। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई। मामा उठ गई होंगी, इनकी दवा का टाइम हो गया। वो बदिक्कत बोली। वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाह रही थी। लाइबा ने इसका रवैया देखकर मज़ीद स्टार्ट नहीं किया। वो फसीहा आंटी को सलाम करके फ़ौरन बाहर निकल गई। बस अब आप यहाँ पे आराम करें, मैं आपके लिए यखनी बना कर लाती हूँ और हाँ, आज शाम में हम चहलकदमी करने भी जाएँगे। मामा को सहारा देकर बेडरूम से लाउंज तक ले आई। कल रात को अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। पहले तो हल्का-सा बुखार था, बाद में एकदम बढ़ गया। मिर्ज़ा आपके तो हाथ-पाँव फूल के वो दौड़ती हुई नीचे से अज़मीर को बुला के लाई। एक तो मामा पहले हार्ट पेशेंट थी, इन्हें ज़रा-सा भी कुछ हो जाता तो मिर्ज़ा आपकी जान पर बन आती। अभी भी अज़मीर ने फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया था। रात के किसी पहर मामा की तबीयत सँभली तो इसने भी सुक्का साँस लिया। अब भी वो इन्हें बेडरूम से निकाल कर लाउंज में ले आई ताकि इनकी तबीयत पर अच्छा असर पड़े। किचन में आई तो काफ़ी काम इसके मुंतज़िर थे। कल रात के बर्तन भी चूँकि तो सिंक में मौजूद थे। इसकी कल की बदहवासी की वजह से किचन उलट-पलट हुआ पड़ा था। वो दुपट्टा उतार कर इसने किचन के दरवाज़े पर लटकाया। सबसे पहले तो मामा के लिए यखनी रखी, फिर सिंक में मौजूद बर्तनों को धोने लगी। बर्तन धो के इन्हें सेट किया, कैबिनेट को दुरुस्त किया। इस दौरान यखनी तैयार हो चुकी थी। बाउल में निकाल कर इसने यखनी अलहदा की, फिर अपने लिए चाय की केतली रखने लगी थी जब इसे लाउंज से किसी की बोलने की आवाज़ें आने लगी। फुप्पो होंगी, मामा का हाल-अहवाल दरियाफ्त करने आई होंगी। इसने कयास किया, फिर केतली में मज़ीद 1 कप का इज़ाफ़ा कर दिया। फुप्पो, निदा और महक नज़र नहीं आई? मुझे कल से कहीं गई हुई हैं क्या? लाउंज में दाखिल होते वो अपनी रो में बोलेगी ज़ुबान को ये ब्रेक तो इस वक़्त लगे जब सामने फँसी आंटी उनके फ़र्ज़ंद हंसला को विराजमान देखा। सबसे पहला एहसास इसे ये हुआ, कोई बगैर दुपट्टे के खड़ी है। अपनी बात मुकम्मल किए बगैर वो अंदरूनी दरवाज़ा धकेल कर किचन की तरफ लपकी। सही कहता है हंसला, मैं इसके सामने इसी रफ़्तार से शर्मिंदा होती रही तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाऊँगी। अपने शानों के गिर्द दुपट्टा फैलाते हुए इसने कूद कर सोचा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वो अदब तरीके से इनका हाल है दरियाफ्त कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मुझे कल फ़िरोज़ा ने बताया कि तुम्हारी मामा की तबीयत रात को अचानक ख़राब हो गई। मैं तो सुबह से आने का सोच रही थी, लेकिन लाइबा ही नहीं आ रही थी। वो परसों से अपने मायके गई है। अभी हंसला आया तो मैं इसे लेकर ही आ गई। जवाबन इन्होंने पूरी तफ़सील बता डाली। वो थोड़ी देर इनके पास ठहरी, फिर उठकर किचन में आ गई। चाय की ट्रॉली धकेलती थी। जब वो दोबारा अंदर दाखिल हुई तो हंसला मामा से इनकी बीमारी डिस्कस कर रहा था। बेटा, मुझे तो बगैर चीनी के चाय देना। ये शुगर लेवल तो बस ज़रा-सी बदपरहेज़ी से आउट हो जाता है। फसीहा आंटी के कहने पे इसने बगैर चीनी की चाय बनाकर इन्हें दी। शुगर? इसने सवालिया नज़रों से हंसला की जानिब देखा। 1 चमचा। इसने संजीदगी से कहा तो मिज़ाब ने चीनी मिक्स करके चाय का कप इसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे इसने शुक्रिया के साथ थाम लिया। किस कार्डियोलॉजिस्ट से चेक करवाती हैं आप आंटी का? चेकअप करवाती हैं आप आंटी का? वो यकीनन अब इसी से मुखातिब था। लाहौर में तो डॉक्टर वारिस खान बहुत मुंजे हुए कार्डियोलॉजिस्ट हैं। यहाँ कराची में तो अजमीर बता रहा था कोई डॉक्टर अब्दुर्रऊफ नियाज़ी हैं, परसों के अपॉइंटमेंट है इनसे। इसने जवाब दिया तो वो सर हिलाते हुए कहने लगा। वो भी काफ़ी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आंटी को तो शुगर का मसला आप पे केक लेना। इसने अदाब मेज़बानी निभाकर इसकी 2 दफ़ा बदतमीज़ी को नज़रअंदाज करके वो इसकी मामा की आदत के लिए आया था। अब इतना हक़ तो इसका बनता था। वो केक वाली प्लेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, "ले लो बेटा, बेकरी का नहीं, मिज़ आपने खुद अपने हाथों से बनाया।" मामा की वज़ाहत पर वो झेंप गई। फिर तो लाज़मी चेक करना पड़ेगा। मुस्कुराती निगाहों से इसे देखते हुए इसने केक का छोटा-सा पीस मुँह में रखा। आप मिज़ आपके साथ कभी हमारे घर का चक्कर लगाएँ? एक जगह बैठे-बैठे भी इंसान बोर हो जाता है। फसिया आंटी अब मामा से मुखातिब थी। मैं आऊँगी, अभी तो फ़िलहाल मैं सीढ़ियाँ उतर नहीं सकती। मामा ने मुस्कुराते हुए उज़र पेश किया। मिज़ाब, तुमने तो इतने दिन से हमारी तरफ का रुख ही नहीं किया। लाइबा कई मरतबा तुम्हारा पूछ चुकी है। मैं तो समझी शायद तुम किसी बात में नाराज़ हो गई हो। इनका रुख अब इनकी तरफ था। नहीं, नाराज़ी वाली तो कोई बात नहीं, बस वैसी मसरूफ़ियत थी। लाइबा आप ही से कहिएगा मैं किसी दिन आऊँगी। वो फ़ौरन बोली। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए।
वो चाय का कप रखते हुए खड़ी हो गई। "बैठिए आंटी, खाना खा कर जाइएगा।" वो भी इनके साथ खड़ी होगी। "नहीं बेटा, फिर से।" इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। "ओके मिज़ाब, आपको किसी भी किस्म की कोई भी ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक कह सकती हैं।" वो अपने पोर्शन के दाखिली दरवाजे तक इन्हें छोड़ने आई जब हंज़ला ने इससे कहा। मिज़ाब ने सर इस बात में हिलाया, इसका दिल एकदम ही तशक्कुर के जज़्बात से लबरेज़ हो गया। और हाँ, फसिया आंटी नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगी थी, वो एकदम मुड़ा। "केक बहुत मज़े का था, मैं दोबारा इसे खाने का इरादा रखता हूँ।" "इसके लिए तो आपको दोबारा आना पड़ेगा," मुस्कुराकर कहती हुए वहाँ से पलट गई। "अच्छा जी, दोबारा हो तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਬਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। हमज़ा, ये आइसक्रीम कहाँ से लिया आपने?" हमज़ा के हाथ में आइसक्रीम देखकर इसने कदे बरहम होकर उसे दरियाफ्त किया। "मामा, पापा ने लेकर दी है।" वो सहम कर बोला। लाइबा ने मुड़कर खौफ की भरी नज़रों से हाशिम को देखा। "आपको इल्म भी है किसी ज़ुकाम और खांसी के बावजूद आपने इसके आइसक्रीम ले दी है? छोड़ो यार, शौहर के लिए तो तुमने सख्त रूल्स अपना ही लिए हैं। रखिए, कम से कम बच्चों के मामले में तो कुछ रियायत कर लो।" उमानी खेती से बोला तो लाइबा ब्लश हो गई। "जी नहीं, ज़रा-सी रियायत कर लो तो फिर लोग ज़्यादा ही फैल जाते हैं," वो इसे चिढ़ाने को बोली। "चलो, थोड़ी-सी रियायत करके तो देखो।" इसके करीब आकर इसके दोनों हाथ थाम लिए। "लगता है आप एसपी हैं?" "फिर क्या लगता हूँ?" दिलचस्पी से पूछा गया। "आशिक लग रहे हैं इस वक़्त।" हाशिम का ज़बरदस्त कहका बुलंद हुआ। "भाई साहब, खैरियत तो है ना?" हंज़ला शायद किसी काम से लॉन में आया था या वैसे ही गुज़रा था, हाशिम पर चोट करना नहीं भूला। "फ़िक्र ना करो, जब तक हंज़ला हारून अहमद ऐसे नेक और मोमिन शख़्स मौजूद है, इस घर में सलामती रहेगी।" हाशिम भी इसी का भाई था। बस अब दोनों भाइयों का मार्का शुरू। इन दोनों को देखकर लाइबा ने एक लंबी सांस खींची। वो जानती थी बातों-बातों में दोनों भाइयों से कोई नहीं जीतने वाला। इसी वक़्त गेट खुला और अंदर दाखिल होने वाली शख़्सियत को देखकर हंज़ला की आँखों में यकलक चमक उभरी, जो हाशिम की तेज़ नज़रों से पोशीदा नहीं रह रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मिज़ाब ने करीब आकर सबका मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो सब कोरस में बोले। लाइबा से करीब पड़ी चेयर्स पर ले आई, जबकि हंसला और हाशिम नीचे घास पर ही धरना मारे बैठे थे। आई थिंक आप मिज़ाब हैं। हम हाशिम ने अंदाज़ा लगाया तो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। बिल्कुल, मैं मिज़ाब ही हूँ, मिज़ाब ताहिर। इसने अपना पूरा नाम बताया। कैसी हैं आप? ये लाइबा आपका बहुत तज़किरा करती है, कभी-कभी तो मुझे जेलसी होने लगती है। हाशिम का अंदाज़ दोस्ताना था। मिज़ाब की मुस्कुराहट हँसी में बदल गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लाइबा भी तो वैसे ही आदत से मजबूर हैं, आप फ़ॉर्म का अपना खुद मत चलाया करें। चलें, आप कहती हैं तो मान लेते हैं। लाइबा बता रही थी कि आप मुस्तकिल यहीं रहेंगी, क्या लाहौर में आपके रिलेटिव्स वगैरह नहीं है? हाशिम याद आने पर पूछने लगा। एक्चुअली मेरे पापा और मेरी फुप्पो 2 ही बहन-भाई हैं। पापा की तो तकरीबन 1.5 साल पहले डेथ हो गई थी। अब फुप्पो ही हैं और मेरी मामा भी मेरी तरह इकलौती औलाद है, लिहाज़ा मेरा ननिहाल भी नहीं। नाना अब्बू और नानी अम्मी काफ़ी अर्सा पहले वफ़ात पा चुके थे। अब दूर के रिश्तेदार तो हैं, लेकिन करीबी सिर्फ़ फुप्पो ही हैं। मैं और मामा चूँकि अब लाहौर में अकेले थे, इसलिए फुप्पो वगैरह के कहने पर हम वो घर बेचकर यहाँ आ गए। क्योंकि मामा हार्ट पेशेंट है, वक़्त पे वक़्त इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए बहुत मसला हो जाता था, लिहाज़ा हमें यहाँ आना ही पड़ा। मैं साहब ने इसे पूरी तफ़सील से जवाब दिया। वो जानती थी कि वो एसपी और गोलमाल जवाब से इनकी तसल्ली नहीं होगी। ओह! तो ये मसला है। मैं भी कहूँ किसका दिमाग ख़राब हो गया जो अपना घर छोड़ के आदिल हाउस में रहेगा, और वो तुम्हारा कज़न क्या नाम है इसका? अज़मीर आदिल। आजकल सियासत में आने के प्रोग्राम बना रहा है, बड़ी ऊँची-ऊँची उड़ानें भर रहा है, किस दिन मुँह के बल नीचे गिरेगा। लाइबा ने लाख आँखें दिखाई, लेकिन हाशिम नोटिस लिए बगैर बोलता रहा। मुझे महक ने बताया तो था कि अज़मीर किसी सियासी लीडर के साथ सेमिनार में शिरकत वग़ैरह करता रहता है, लेकिन मैंने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। क्योंकि कोई ख़ास क्यों, कोई ख़ास बात है क्या? इसने कुछ परेशान होकर दरियाफ़्त किया। आखिर जो भी था वो इसकी इकलौती फुप्पो का इकलौता बेटा था। ख़ास बात तो अपने वक़्त पर ही मंज़र आम पर आएगी, लेकिन जब इंसान आग से खेलेगा तो चिंगारियाँ तो उड़ेंगी और इसके आपके दामन पर भी गिरेंगी, लिहाज़ा होशमंद इंसान को एहतियात करनी चाहिए। इसकी मुबहम सी अब बस भी करें, ये आपका थाना नहीं है जो यूँ तफ्तीश करे और लेक्चर देते फिरें। आप तो घर में भी एसपी बन के बैठ गए। लाइबा से रहा नहीं गया तो बिलाखिर बोल उठी। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम शिकवा कर रही थी कि मैं एसपी नहीं लगता, इसने मुस्कुराते हुए लाइबा को लाजवाब किया तो वो झुँझलाकर मज़ाक से कोई बात करने लगी। लाइबा की किसी बात पर बेसाख्ता खिलखिलाई, इसके सभी चेहरे पर हंसला की निगाहें टिक सी गई। कुछ तो था इस चेहरे में जो अपनी तरफ खींचता था। दिल दो खुद ब खुद इसकी तरफ हमकता था, जो सबसे मुख्तलिफ थी पर अपनी-अपनी लगती थी। इसकी निगाहों का इर्तिकाज़ महसूस करके मिज़ाज पज़ल सी हो गई। गालों पे खुद ब खुद गुलाबी चमक छलकने लगी। हंज़ला हाशिम को यकसर फ़रामोश किए एकटक पूरी दिलचस्पी से देख रहा था। दफ़्तनी से अपने कंधे पर दबाव महसूस हुआ। इसने चौंक कर देखा, हाशिम इसे देख रहा था। नहीं, बेहिजाब वो चाँद सा कि नज़र को कोई असर ना हो। इसे इतनी गरमाई शौक से बड़ी देर तक ना तका करो। हंज़ला ने छेमते हुए अपनी त्वचा में ज़ाब से हटाई और ज़रा-ज़रा सी बात पर गुस्सा करने वाले अपने अकड़ भाई को इस रूप में देखकर हाशिम को इस पर टूट कर प्यार आया। कब हुई ये वारदात? इसकी तरफ झुकते हुए हाशिम ने सरगोशी में दरियाफ्त किया। बस अचानक ही, मुजरिमों की तरह सर झुकाते हुए बोला। दूसरी तरफ भी ऐसा मामला है? नहीं मालूम। नहीं तो मालूम करो ना यार, वो क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कैसे मालूम करूं? इसने बेबसी से दरियाफ्त किया। मर्द बनो यार, इस उम्र में तो लोग 8-10 इश्क भुगता लेते हैं। हाशिम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे 8-10 नहीं, एक ही काफी है, वो मसनूई खफकी से बोला। चलो ठीक है भाई, नाम ही गारंटी है, मैं तुम्हें मौका फराहम करता हूँ, आगे का काम तुम्हारा है। हंसला ने इस बात में सर हिलाते हुए लाइबा को पुकारने लगा। कोई चाय पानी तो पूछ लो अपनी मेहमान को, क्या सोचते हो कि कैसे इल मैनर्ड मेजबान है? ओह माय गॉड, मेरे ज़हन में नहीं रहा। तुम बैठो यहीं मिज़ाब, मैं 5 मिनट में चाय लेकर आई। लाइबा अपने सर पर हाथ मारते हुए खड़ी हो गई। मिज़ाब ने लाख मना करना चाहा, लेकिन मनसूनी करते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। आपने ख्वामख़ाह इन्हें किचन में धकेल दिया, मैं चाय पी कर आ रही हूँ।
वो हाशिम से मुखातिब हुई। अलबत्ता हंसला की तरफ देखने से उसने गुरेज ही किया। कोई बात नहीं, खवातीन किचन के काम करती अच्छी लगती हैं। अरे याद है, मुझे तो आज एक ज़रूरी फ़ोन करना था। हंसला तुम तब तक मेज़ाब को कंपनी दो, मैं अभी आया। मेज़ाब तुम जाना नहीं। मुझसे ताकीद करते हुए अंदर चला गया तो हंसला अपनी जगह से उठकर इसके मुकाबले आकर बैठ गया। आंटी की तबीयत कैसी रहती है? अब बात कहीं से तो शुरू करनी थी। ठीक है, अब तो चल फिर भी लेती हैं, इसने नज़रें हाथों पर जमाते हुए जवाब दिया। ये नहीं था कि वो कोई दब्बू किस्म की लड़की थी। बचपन से इसको को एजुकेशन में पढ़ने की वजह से नहायत सहूलत से इस रात से गुफ्तगू कर लिया करती थी। लेकिन मुकाबिल की आंखों में कुछ ऐसा तो ज़रूर था जिसे कन्फ्यूज़ कर देता था। आज कितने भी दिनों बाद आपने यहाँ का रुख किया, कुछ अंदाज़ा है? अभी भी अगर लाइबा भाभी आपको सुबह फ़ोन ना करती तो आप हरगिज़ नहीं आती। सुबह लाइबा बता रही थी कि आज इसने मेरे आपको बुलवाया इनसे मिलाने के लिए। वो अपने कमरे से निकला था, ये अल्फाज़ इसके कानों में भी पड़ गए। अब लाइबा हाशिम को लॉन में बैठा देखकर वो भी इधर ही आ गया, क्योंकि इसे इल्म था कि लाइबा भाभी इसे लॉन में ही रोक लेंगी। और ये ना कोई अंदर बैठा मक्खियाँ मारता रह जाए, इसकी क्लब से छुट्टी भी बेकार में ज़ाया हो जाए। ओह माय गॉड! सही गल है, मक्खियाँ तो नहीं मारी हैं, चंगा किता आ गया। जिन्हें मैं याद थी उन्होंने फ़ोन भी कर लिया। इसकी हाज़ा-जवाबी एकदम ही होत कर आई। "अगर मैं तुम्हें फ़ोन करके बुलाऊँ तो आ जाओगी?" इसने ज़रा-सा इसकी तरफ झुकते हुए पूछा। एक तो इसके अंदाज़े से ख़ातिब की तब्दीली, दूसरा लहज़े की तब्दीली, वो चंद लम्हों तक कुछ बोल ही नहीं पाई। "क्यों? मैं कोई इमरजेंसी पुलिस का नुमाइंदा तो नहीं? इधर एक फ़ोन करो, उधर बंदा हाज़िर।" कुछ देर बाद वो खुद पर काबू पाकर पूरे एतमाद से बोली, "लेकिन कभी-कभार दूसरे लोगों से भी इमरजेंसी वाला मामला हो सकता है।" वो इसकी बात पूरी तरह एन्जॉय करते हुए बोला, "तो फिर दूसरे लोगों से राब्ता करें।" वो कंधे उचकाकर लॉन में खिलने वाले फूलों को देखने लगी। कर तो रहा हूँ, इसका लहज़ा मानी के था। मिज़ाब ने जवाबन कुछ कहने के लिए निगाहें ऊपर उठाई, लेकिन इसकी खूबसूरत आँखों से टकरा के इसकी निगाहें फ़ौरन पलट आई। दिल एक बार की ज़ोर से धड़का बढ़कर अंदर जाना चाह रही थी जब हंसला ने इसे पुकारा। मिज़ाब, लहज़ा धीमा मगर मज़बूत था। मुझे नहीं मालूम तुम मेरे लिए क्या राय रखती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग सी फीलिंग्स रखता हूँ। मैं कोई फ्लर्टी बंदा नहीं हूँ, सीधे-साधे रास्ते का कायल हूँ। इसके लहज़े में मुकम्मल सच्चाई थी, मिज़ाब इस सच्चाई को झुठला नहीं सकी। तुम कुछ नहीं कहोगी? इसकी बात पर पूरी तरह बौखला गई थी। इसके इस वहमो-गुमान में भी नहीं था कि ज़िंदगी में कभी इस तरह की सिचुएशन से भी वास्ता पड़ेगा। मैं क्या कहूँ? इसका घबराहट ज़दा चेहरा इसे लुत्फ़ दे गया। मैं तुम्हारी राय का मुंतज़िर रहूँगा। चंद सानिये से देखने के बाद कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। तौबा! कैसी गरम निगाहें, गोया हीटर जल रहे हों। इसके जाने के बाद मिज़ाब ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेर कर किसी नादीदा तासुर को ख़त्म करना चाहा। लाइबा इसे आवाज़ें दे रही थी, खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करते हुए बंदर की तरफ बढ़ गई। तुम सेहत का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखती तस्नीम। देखो तो कितनी कमज़ोर होती जा रही हो, कुछ खाया पिया करो। आज फूप्पो को टाइम ही मिल गया और ना जाने अपने कीमती वक़्त में से उन्होंने कैसे चंद लम्हात अपनी भाभी के लिए निकाली, और मामा तो थी ही सदा की साबिर व कानिह। इसी पर निहाल हो रही थी कि इनकी नंद को इनका कितना ख़्याल रखती हैं। मम्मा रा भी ना जेन थोड़ा जा मसला है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपा बेगम, आप मेरी तरफ से फ़िक्रमंद मत हुआ करें, मिज़ाब मेरा बहुत ख़्याल रखती है। आप बच्चों की सुनाएँ, अज़मीर को काफ़ी दिनों से मैंने नहीं देखा। अज़मीर बेचारे को कहाँ टाइम मिलता है, लाहौर वाले बिज़नेस को भी इसे देखना पड़ता है, बेचारा घनचक्कर बन के रह गया। पप्पो के लहजे में जहाँ भर की हिलावट सिमट आई अपने बेटे के ज़िक्र पर। अज़मीर अगर ज़्यादा मसरूफ़ हो गया तो मैं ऑफ़िस चली जाया करूँगी, वैसे भी मैं घर में फ़ारिग ही होती हूँ, इसी बहाने मसरूफ़ियत भी हो जाएगी। मिज़ाब की बात पर पप्पो बुरी तरह बौखलाई थी। अरे इतनी नाज़ुक सी हो तो तुम कहाँ ऑफ़िस में दिमाग खपाती फिरोगी? दफ़ा करो, खुद ही अज़मीर जाना है उसका काम। तुम घर में सिर्फ़ भाभी की देखभाल करो, इन्हें ज़रा-सी भी तकलीफ़ हो ये मुझे मंज़ूर नहीं, बिज़नेस में लॉस होता है तो होता रहे, मेरी भला से, जान से कीमती कोई चीज़ नहीं। फूप्पो ने फ़ौरन बात सँभाली। एन फूप्पो ने बताया बिज़नेस के चक्कर दे विच है। मिज़ाब के ऑफ़िस जाने का मतलब था इनका सारा कच्चा-चिट्ठा खुल जाता, मिज़ाब इनकी फ़ितरत को दाद दिए बिना नहीं रह सकी। अच्छा बेटा मैं अब चलती हूँ, तुम भाभी की खिदमत किया करो, मैं हर वक़्त इनकी तरफ से फ़िक्रमंद रहती हूँ। फूप्पो ने बुढ़चाने में आफ़ियत समझी, वादा मिज़ाब दोबारा इस बात का तज़किरा ना कर दे। तुम्हारी फूप्पो बहुत अच्छी हैं, हर वक़्त मेरी तरफ से फ़िक्रमंद लगी रहती हैं। इनके जाने के बाद मामा भी इनकी तारीफ़ में रत्बुल लिसान थी। इसीलिए महीने 2 महीने बाद एक चक्कर ऊपर का लगाती हैं, इसने सोचा। शुरू से मुझसे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह, और इन्होंने आड़े वक़्त में हमारी मदद की थी। मामा की तकरीरें भी जारी थी। मिज़ाब को नहीं याद पड़ता था कि इनके ऊपर आड़ा वक़्त आया और फूप्पो ने अपनी खिदमत पेश की। पता नहीं मामा को वाक़ई पप्पो की ऊपरी मोहब्बत और लगावट नज़र नहीं आती थी या वो जानबूझकर नज़रअंदाज कर देती थी। कुछ लोग होंदे दा ने की कह सकदे। बहरहाल मिज़ाब ने मामा से पप्पो के मुतल्लिक़ किसी राय में कोई इख्तिलाफ़ नहीं किया। मामा अक्सर और बेशतर बीमार रहती थी और मिज़ाब की हर मुमकिन कोशिश होती कि इन्हें हर हाल में खुश रखें। अभी वो मुस्कुराकर सर इस बात में हिला गई थी। बातों के दौरान इसकी नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी जहाँ 4 बज रहे थे। आज इसने लाइबा आपी के साथ मार्केट जाना था अपने और मामा के चंद ज़रूरत की चीज़ें खरीदने। लाइबा ने इसे 3 बजे का टाइम दिया था, पूरा घंटा ऊपर हो गया तो हड़बड़ाकर खड़ी हुई। क्या हुआ? इसे यूँ अचानक खड़ा होते देख मामा ने पूछा। मुझे लाइबा आपी को मार्केट जाना था, मौसम तब्दील हो रहा है, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी थी। 3 बजे का टाइम दिया था, मेरे ज़हन से ही निकल गया। हाँ, बताया तो था तुमने, मुझे भी याद नहीं रहा। अब जल्दी चली जाओ, देर से जाओगी तो देर से लौटोगी, तुम्हारी तो खैर है, जबकि उसने तो पूरा घर सँभालना होता है। मामा ठीक कह रही थी, इसलिए तो परेशान हो गई थी। मामा को अल्लाह हाफ़िज़ कहकर वो तेज़-तेज़ सीढ़ियाँ उतरती नीचे। अज़मीर आज खुद ही पोर्च में अपनी कार को धो रहा था, लिहाज़ा सारा पोर्च गीला था। एक तो फर्श चिकना और गीला था, ऊपर से वो भी जल्दी में थी। नतीजतन इसकी हाई हील की सैंडल फिसली थी। आह! एक ज़ोरदार चीख इसके मुँह से बरामद हुई। इससे पहले कि वो लहराकर ज़मीन-बोस होती, अज़मीर ने फ़ौरन इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिसके नतीजे में वो गाड़ी के बॉनेट के ऊपर गिरा था और मिज़ाब इसके ऊपर। चंद सेकंड से उसकी आँखों के आगे तारे नाचते रहे। अल्लाह!
वेलकम माय लाइफ। तुमने पिछले कई माह का शिकवा एक साथ ही दूर कर दिया। अजमीर फौरन संभल के अलबत्ता अपनी पोजीशन तब्दील करने की बजाय इसने अपना बाजू इसके गिर्द हमाल कर दिया। शट अप, छोड़ो मुझे। हवास कायम होते इसके हिसाब बुरी तरह झंझना उठे। अरे अरे, इतना गुस्सा इस नाजुक वजूद पर जचता नहीं। इसकी बेबाक नजरें मुसलसल मजाक के चेहरे का तवाफ करी थी। इसने पूरी कुव्वत सर्फ करके खुद को इसके हसार बल के शिकंजे से छुड़वा अजमीर का बुलंदो बांग कहकर इसे सख्त नागवार गुजरा था। हम इसे नजरअंदाज करके वो आगे बढ़ गई। अंतरा थुप-थुप सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया था। गुस्से की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अभी भी टेरेस पर खड़े होकर जो मंज़र वो देख कर आया था, इससे इसका खून अभी तक गर्म हो रहा था। लाइबा ने सुबह इसे बताया कि आज वो और मज़ाक 3 बजे तक मार्केट जाएँगे। इसे अगर कुछ मँगवाना तो बता दे। ज़रूरत तो इसे किसी चीज़ की नहीं थी, अलबत्ता मज़ाक को देख के काफ़ी दिन गुज़र गए थे। दिल क्या तो मजबूर होकर वो 2:30 बजे ऑफ़िस से उठा था। 4 बजे तक जब इसकी आमद नहीं हुई तो झुँझलाकर टेरेस पे चला गया। अब जो सीन क्या हुआ हंसला? इसका सुर्ख फूला हुआ मुँह देखकर लाइबा ने इस्तफसार किया। कुछ नहीं, इस गुस्से से सोफ़े को ठोकर मारते हुए इसी पर बैठ गया। लाइबा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। काफ़ी अरसे बाद वो इसे गुस्से में देख रही थी, वरना अब तो वो ज़्यादातर कुछ गुनगुनाता हुआ नज़र आता था। इसी वक़्त मेज़ाब अंदर दाखिल हुई। आई एम सॉरी आपी, मैं लेट हो गई। इसने आते ही माज़रत की। हंज़ला ने तेज़ नज़रों से इसे घूरा। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हें 10 मिनट बैठना पड़ेगा। मामा की एक दोस्त आई है, मैं ज़रा इन्हें चाय सर्व करूँ। लाइबा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर हंसला की तरफ मतवज्जो हुई। तुम्हारे लिए भी चाय लाऊँ? मुझे नहीं पीनी चाय, वो तड़क के बोला। मेज़ाब ने चौंक कर पहले इसे फिर लाइबा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो कंधे उचकाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। आपकी तबीयत तो ठीक है? इसके चेहरे के तासुरात से ख़ाइफ़ होते हुए मेज़ाब ने पूछा। जवाबन इसने ऐसी कांटदार नज़रों से इसे देखा कि वो जज़्बज़ होके रह गई। या अल्लाह खैर ही हो। मौसूफ तो पूरे जलालुद्दीन अकबर बने बैठे हैं। तुम्हें हाई हील सैंडल पहनने का बहुत शौक है? वो भी इसके सर पर खड़ा पूछ रहा था। नहीं, कुछ ख़ास तो नहीं। वो अंदर ही अंदर इसके सवाल पर हैरान होते हुए बोली। तो फिर क्या चलते वक़्त आँखें बंद करके चलती हो? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसके बरहम लहजे पर अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो तुम्हारा कज़न अज़मीर आदिल एक नंबर का लोफर इंसान है, क्या तुम खुद से एहतियात नहीं कर सकती? मेज़ाब के ज़हन में छमाका हुआ, तो क्या हंसला वो सब देख रहा था? तो क्या मैं जानबूझकर गिरी थी? मेरा पाँव फिसल गया था। बेसाख्ता बोल उठी। तुम ध्यान से नहीं चल सकती? ध्यान से तो चल रही थी। ध्यान से ऐसे चला जाता है? लाइबा जो हाल कमरे से गुज़र के ऊपर जाने लगी थी, इन दोनों को आतिशफ़िशा बना देखकर लपक कर इस तरफ बढ़ी। क्या हो गया? तुम दोनों को पागल हो गए हो? मुझे नहीं पता, इनसे पूछो जो मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो अपनी आँखों में आई नमी को पीछे धकेलते हुए बोली। बाय गॉड भाभी, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। लाइबा के मलामती नज़रों के जवाब में फ़ौरन बोला। मेज़ाब ने एक नज़र इसे देखा और बाहर की तरफ भाग गई। मेज़ाब रुको, सुनो। लाइबा ने इसे पीछे से पुकारा, लेकिन इसने मुड़कर नहीं देखा। हंसला बहुत बुरी बात है, रोको इसे। वो खुद भी इसकी आँखों की नमी से डिस्टर्ब हो गया था, फ़ौरन इसके पीछे लपका। मेज़ाब, इसने इसे जा ही लिया। वो रो रही थी। खुद को ढेरों मलामत करने के बाद वो नरमी से मुखातिब हुआ। आई एम सॉरी मेज़ाब, वेरी वेरी सॉरी। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, बस वैसे ही मुझे गुस्सा आ गया। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ ये आँसू बहाना बंद करो। वो लिजाजत से बोला। मेज़ाब ने अपने आँसू साफ करके एक नज़र इसकी तरफ देखा। गहरी ब्राउन आँखों पे घनेरी पलकें, भीगी हुई पलकें। हंज़ला की एक हार्ट बीट मिस हुई। आपको पता है मैं कितनी डिसहार्ट हुई हूँ? आई एम सॉरी अगेन। इसने झट दोबारा माज़रत की। आई एम सॉरी। मेज़ाब ने इसकी नकल उतारी। चंद साने बाद दोनों ही हंस पड़े। मैं अपने दरमियान कोई तीसरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो संजीदा लहजे में गोया। मुझे कर लोगे या नहीं? लाइबा न जाने किस वक़्त क्या खड़ी हुई थी, वो दोनों बुरी तरह बौखला गए। लाइबा भाभी, आप कब आई? हंसला जल्दी से संभल के बोला। बहुत गलत मौके पर। वो मानी खेजी से मुस्कुराई। वो दोनों ही चहम गए। तुम ज़रा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो और खबरदार अगर आइंदा मिज़ाब को तंग किया तो। इन्हें सताने का इरादा मुलतवी करके वो हंसला के कान खींचते बोली। उफ़ भाभी, कान तो छोड़ दे। वो करा के बोला तो इसके घने बालों वाले सर पे एक चप्पत रसीद करते हुए लाइबा ने इसका कान छोड़ दिया। चलो मिज़ाब, पहले ही देर हो गई है। मैं चलूँ आपके साथ? मिज़ाब की तरफ देखते हुए इसने इशारे से पूछा। मुँह धो रखो। लाइबा ने साफ हरी झंडी दिखाई। पड़ोसियों से भी राय मांग ले। इसका इशारा साफ मेज़ाब की तरफ था। आए लाए पापी, लोग तो ख्वाम का कंबल हो रहे हैं। मेरे पापा कहते थे किसी को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवानी चाहिए, वरना लोग सर पर चढ़कर बोलने लगते हैं। वो साफ इसे चिढ़ा रही थी। जी नहीं, ज़्यादा खुशफ़हम होने की ज़रूरत नहीं, मैं तो फ़ारिग था इसलिए ऑफ़र कर दी। इसने भी फ़ौरन बदला उतारा। वही नरम-गरम निगाहें यहीं पर आके मेज़ाब पज़ल हो जाती थी और वो शायद इस बात से वाकिफ़ भी था। बस करो भई, तुम दोनों ही सवा-सेर हो। लाइबा जो इनकी नोक-झोंक सुन रही थी, खिलखिला के हँस पड़ी, जिसमें मेज़ाब की शर्मिंदगी मुस्कुराहट भी शामिल थी। मामा, मेरा ख़्याल है अब हंसला की शादी कर देनी चाहिए। छुट्टी का दिन होने के बायस वो सब आज घर पर ही मौजूद थे। इस वक़्त वो सब सिटिंग रूम में बैठे थे। हंसला ने जो ही अंदर कदम रखा, लाइबा झट बोल पड़ी। हंसला के होंठों पर मुस्कान बिखर गई। मैं तो खुद बहुत कहती हूँ, पर ये माने तो? मामा जानती थी इसका जवाब एक ही होता है, अभी नहीं। अब तो इसके बड़े भी मानेंगे। लाइबा ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। तो फिर बड़ों से ही मनवा लें, आपके पास ही बैठे हुए। इसने लाइबा के दाएं तरफ इशारा किया, जहाँ हाशिम बैठा हुआ था। अब कोई बहाना नहीं चलेगा बरखुरदार, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। लाइबा इसकी बात का बुरा मनाए बगैर बोली। फिर कितने पर निकले उड़ती चिड़िया के? इसने बात मजाक में टाली। टालो मत, मुझे ही तुम्हारे काम आना है। लाइबा ने आंखें निकाली तो वो हंसने लगा। मामा, क्या ख्याल है, यहीं के आसपास से हंसला की दुल्हन ले आए? हाशिम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। कहाँ से? फसिया ने सवालिया नजरों से बेटे की तरफ देखा। सामने वाले घर से। हंसला को देखते हुए लाइबा शोखी से बोली। सामने वाले घर से कौन? फसिया ना समझ में आने वाले अंदाज में पूछा। हंसला को तो दोनों ही पसंद है, फाइनल सिलेक्शन आप कर दे, निदा या महक। हाशिम अपने उबलते कहके को मुश्किल दबाते हुए संजीदगी से बोला। वो जानता था हंसला को निदा और महक से कितनी चिढ़ है। भाई। हंसला सोफे से ऐसे उछला जैसे इसमें 1000 वोल्ट का करंट पास आउट हो रहा हो।
मुझे तो दोनों नहीं पसंद, फसिया ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। इतनी देर बाद राजी भी हुए तो कैसी लड़कियों पर, इससे तो अच्छा तुम कुंवारे रह लो। गालिबन वो खासी बदमजा हुई थी। नहीं मामा, भाई तो ऐसे मजाक करे, मैं नींद और महक तो कभी भी नहीं, मैं तो वो हिचकिचाकर माँ के सामने कैसे इतराफ करता। बात पूरी करो बेटा, वरना फिर निदा या महक। हाशिम महजूज होकर बोला। आप तीसरा ऑप्शन भी देना। आखिरकार लाइबा ने इसकी मुश्किल हल की। मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही, खुल के बताओ क्या बात है। इनकी मुबहम बातों से फसिया उकता कर बोली। खुलकर तो अब हंसला बताएगा। चलो अभी हंसला शुरू हो जाओ। हाशिम ने फिर हंसला को फंसाया तो वो इसे घूर कर रह गया। मामा दरअसल हम चाह रहे हैं कि मिजाब को हंसला के लिए मांग ले। इतनी अच्छी लड़की है, देखी भाली, फिर करीब भी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? एक मर्तबा फिर लाइबा को बोलना पड़ा। क्या मिजाब हंसला की पसंद है? चंद साने खामोश रहने के बाद मामा की संजीदा आवाज उभरी। हम सबकी पसंद है। हाशिम फौरन बोला। मामा के अंदाज पर एक लम्हे के लिए जैसे हंसला का दिल रुक सा गया। हाशिम और लाइबा भी घबरा गए। तो फिर भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? फसिया मुस्कुराई तो इन सबकी जान में जान आई। तो फसिया ने तराज जरूर कढ़ाना सी सारे ना पहले। कोई दिन फिक्स कर लो, फिर मैं और हाशिम और लाइबा चले जाएंगे। नेक काम में देर कैसी। बेटे की खुशी इनके चेहरे से हवेदा थी। तुम फूटो यहाँ से तो शरीफ लड़के ऐसे मौके पर बड़ों के दरमियान घुसकर नहीं बैठते। लाइबा ने इसे भगाना चाहा। हाँ तो शरीफ लड़के नहीं बैठते। खुशी से इसका चेहरा खिला पड़ रहा था। वैसे काफी दिनों से मैंने बस आपको देखा नहीं, तबीयत तो ठीक है इसकी? फसिया ने कुछ फिक्रमंदी से पूछा। इसकी तबीयत तो ठीक है, आपके बेटे की नीयत ठीक नहीं। वो बेचारी जब भी आती है हमनको की तरह से तकना शुरू कर देता है। लाइबा ने शरारत से इसे देखा तो सटपटाते हुए खड़ा हो गया। वो अगरचे खुद पर कंट्रोल रखता था कि सबके सामने से कोई गैर इख्तियारी हरकत सरजद ना हो, लेकिन नामालूम कैसे नजरें खुद ब खुद इसकी जानिब उठ जाती थी। लाइबा और हाशिम बाद में इसका खूब रिकॉर्ड लगाते थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अपने कमरे में आकर बेख्तियारी इसका नंबर डायल कर बैठा। वालेकुम अस्सलाम, मैं हंसला बोल रहा हूँ। दूसरी जानिब से इसने फोन उठा लिया। मैंने पहचान लिया, कैसे आप? बिल्कुल ठीक, तुमसे एक ज़रूरी बात करना थी। मसरूफ़ तो नहीं हो? नहीं, आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। इसके संजीदा लहजे में वो ठिठक गई। दरअसल मामा वगैरह तुम्हारी तरफ आना चाह रही है। मैं इससे पहले तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो गोया हुआ। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। हेलो मेज़ाब, तवील खामोशी को बिलाखिर इसने तोड़ा। जी? इसकी मद्धम सी आवाज़ है। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? इसकी खामोशी से वहम में मुब्तला कर रही थी। मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझ जाएँ। वो बमुश्किल बोल पाई। क्या समझ जाऊँ? इसने जज़ाहलाफ़ाना से बात की दरियाफ़्त की। यही कि मैं एक नासमझ इंसान के साथ ज़िंदगी गुज़ार ही लूँगी। कहते इसने रिसीवर झट से रख दिया। बेल दोबारा हुई। मेज़ाब ने घूर कर फ़ोन उठाया। नासमझ इंसान को कबूल करने का शुक्रिया, और हाँ, मैं अब जल्द आऊँगा केक खाने नहीं, मिठाई खाने। शोख आवाज़ में कहते हुए इसने फ़ोन बंद कर दिया। मेज़ाब किसी ख़्याल के तहत मुस्कुराती हुई अंदर बढ़ गई थी। ड्राइंग रूम में सब जमा थे। हंसला ने अपना कहा जल्दी पूरा कर दिया। इसकी तवक्का के मुताबिक मामा ने खुद कोई फैसला करने के बजाय पप्पू और अंकल को बुलवा लिया था। अजमीर भी इनके साथ ही है। चाय वगैरह अंदर भिजवाने के बाद वो खामोशी से दोबारा किचन में आके बैठ गई। धड़ धड़ करते दिल समेत वो फैसले की मुंतज़िर थी। इसे पूरा यकीन था पप्पू वगैरह को कोई एतराज़ नहीं होगा। पप्पू वगैरह ने कितना एतराज़ नहीं होगा। जो जायदाद नजर आते तो इनके भी नजर होनी है। इसके बावजूद दिल की हालत अजीब-सी हो रही थी। वो जानती थी दूसरी तरफ हंसला भी ऐसी कैफ़ियत का शिकार होगा। हम आपके बहुत ममनून हैं फसीहा खातून, आपने हमें इस काबिल गिरदाना। हंसला बिलाशबा हर लिहाज से परफ़ेक्ट इंसान है, लेकिन मिज़ाब शुरू से मेरे हमारे अज़मीर की अमानत है। मैंने अपने मरते हुए भाई से वादा किया था कि मिज़ाब को अपनी बेटी बना के रखूँगा। आदिल की बात पर जहाँ इन तीनों के चेहरे तारीक हुए, वहाँ तस्नीम ने भी चौंक कर अपने नंदोई की तरफ देखा। ताहिर ने तो मुझसे ऐसी कोई कभी बात नहीं की। हो सकता है आदिल भाई आपा से बेगम से की हो। अगर वो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। वो सोचकर मुतमिन हो गई। दौर फटे मुँह तेरे उत्ते फिर, जो मुतमिन हो गई है। हम भी मिज़ाब को बेटी बना के रखेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मिज़ाब को हमारे घर में कभी कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। हाशिम सबसे पहले संभल कर बोला। हमें वैसे तुम पर पूरा एतमाद है हाशिम बेटे। अगर बचपन से अज़मीर और मिज़ाब की निस्बत तय नहीं होती तो हम बगैर हिचकिचाहट के राज़ी बख़ुशी मिज़ाब को आपकी झोली में डाल देते। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी समझ रहे होंगे। आदिल नाहिद स्वभाव से बात कर रहे थे। मिज़ाब का हंसला से शादी करने का मतलब था करोड़ों की जायदाद का हाथ से निकलना, और ऐसा वो हरगिज़ नहीं कर सकते थे, और एसपी हाशिम हारून अहमद से भी वो बिगाड़ना नहीं चाहते थे। लिहाजा वो चाह रहे थे कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। आप क्या कहती हैं आंटी? लाइबा ने तस्नीम से राय लेना चाहिए तो आदिल के साथ-साथ अज़मीर और पप्पू भी एक लम्हे के लिए बौखला गए। आदिल भाई और आपा बेगम मिज़ाब के बड़े हैं। ये जो भी फैसला करेंगे मिज़ाब की बेहतरी के लिए करेंगे। दौर फिट्टे मुँह फिर तेरे उत्ते। तेरी औलाद नहीं है? इन्होंने पहले कभी इनके फैसले से इख्तिलाफ़ किया तो जब कर दी। आप एक मर्तबा मिज़ाब से भी राय ले लीजिएगा। लाइबा ने आखिरी कोशिश की। वो हमारी बेटी है, हमारे फैसलों से इन्हराफ नहीं करती। फूफो मतानत से बोली। हम आपको मायूस लौटाना तो नहीं चाहते, लेकिन मिज़ाब के मामले में हम मजबूर हैं। अलबत्ता निदा और महक भी आपकी बेटी है। फूफो ने दर्द भरता जो बात करनी चाहिए वो तीनों समझ गए। ओके, फिर हमें इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। हाशिम खड़ा हुआ तो लाइबा और फसिया भी इसकी तकलीद में खड़ी हो गई। हाशिम ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, अलबत्ता सीडी प्लेयर हल्के सुरों में ऑन था। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। वो बाजू आंखों पर रखे लेटा था, किसी और ध्यान में गुम। अपने बाएं कंधे पर इसे अभी भी एक लमस महसूस हो रहा था। इसके बालों से उठती दिल पर ये महक भी महसूस कर सकता था। वो इसके बेहद करीब थी, वो महसूस कर सकता था, वो महसूस कर रहा था। आज मुश्किल था संभलना है दोस्त, तो मुसीबत में अजब याद आया। हाशिम ने आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की, सारा कमरा रोशनी में नहा गया। हाथ बढ़ा के इसने सीडी प्लेयर ऑफ कर दिया। हंसला एकदम चौंक गया। फिर हाशिम को अपने कमरे में देखकर एकदम उठ बैठा।
इतना सोगवार माहौल क्यों बना रखा है? इसके सामने बेड पर बैठते हुए हाशिम ने अपने लहजे को खुशगवार बनाने की कोशिश की। हंजला की हालत देखकर उसे हकीकतन दुख हुआ था। बस ऐसे ही मूड हो रहा था, बावजूद कोशिश के वो अपने लहजे में बशाशत नहीं सम हो सका था। हंसला, इधर देखो मेरी तरफ। कुछ तो था हाशिम की निगाहों में जो वो नजरें चुरा गया। मर्द बनो यार, हाशिम ने इसका कंधा थपथपाते हुए कहा तो इस तरारी अंदाज में इसके सीने से जा लगा। मैं मजाक के बगैर नहीं रह सकता हाशिम भाई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो इस वक्त कहीं से भी लंबा चौड़ा मर्द नहीं लग रहा था, बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा लग रहा था, जैसे बचपन में हाशिम के कंधे से लटक कर अपनी बेजा फरमाइश और जिद्दें भी पूरी करवा लिया करता था। इनके वालिद बचपन में वफात पा गए थे। हाशिम ने इसे बड़े भाई का नहीं बाप का प्यार भी दिया था। हंसला इससे 8 साल छोटा था, इसके बावजूद उसे हमजा से ज्यादा अजीज था। तो तुम्हें कौन कह रहा है मिज़ाब के बगैर रहने को? अभी तुम्हारा भाई ज़िंदा है, मिज़ाब इसी घर में आएगी, डोंट वरी। वो मुसलसल से थपकते हुए दिलासा दे रहा था। लेकिन वो अज़मीर, वो एकदम ही से अलहदा होकर पूछने लगा, अज़मीर की छुट्टी करवा देंगे और क्या? वैसे भी इसके दिन पूरे होने वाले हैं। आजकल ये भी पार्टियों के साथ सरगर्म अमल है, वैसे भी हमारी टॉप लिस्ट में है। बस मौके मिलने की देर है, तुम कहो तो अभी इसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दूं, आखिर को रकीब है तुम्हारा। आखिर में वो शरारत से बोला तो न चाहते भी हंसला के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभर आई। नहीं, हर काम अपने वक़्त पर ही अच्छा लगता है, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। ये हुई ना बात, अपने अंदर स्टैमिना पैदा करो हर तरह के हालात को फ़ेस करने का। ये छोटे-मोटे नशेबों फराज़ तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। और हाँ, एक दफ़ा मिज़ाज से बात ज़रूर करो और अपनी अम्मा को राज़ी कर ले तो फिर बाकी मामला तो नहायत आसान है। ये अज़मीर तो वैसे भी किसी लिहाज़ से इसके काबिल नहीं, एक नंबर का करप्ट इंसान है। हाशिम ने कहा तो बस बाद में सर हिलाने लगा। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हाशिम ने शेर पढ़ा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। बी ब्रेव, कुछ नहीं होगा, बस अल्लाह ताला से दुआ करो। इसे हौसला देता हुआ खड़ा हो गया तो हंसला ने मशकूर नजरों से इसे देखने लगा। देखो की मुकदी हुन, लाख सबकी ख्वाहिश के बेशुमार दावे हों, इसको भूल जाने के बेपनाह इरादे हों और इस मोहब्बत को तर्क करने का, जीने का फैसला सुनाने को कितने लफ्ज़ सोचे हों, दिल को इसकी आमद पर बरमला धड़कने से कौन रोक सकता है। हंसला दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने बैठी थी, आज कितने दिनों बाद वो इसे देख रहा था। निगाहें एक मर्तबा फिर इसे दगा देने पर तैयार थी, लेकिन खुद को कंट्रोल रखते हुए इसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। तुम इस फैसले से खुश हो? इसका पहला सवाल तीर की तरह दिल में पेवस्त हो गया। यही हमारे बड़ों का फैसला है, वो कालीन के नक्शो-निगार को खोजती हुई बोली। मैं बहुत खुश हूँ। ये फ़िक्रा मामा के सामने मैं न जाने कितनी बार बोल चुकी थी, लेकिन इस शख्स के सामने बैठ के इसे अंदाज़ा हो रहा था कि झूठ बोलना कितना मुश्किल है। तुम्हारा फैसला क्या है? दूसरा सवाल पहले से भी ज़्यादा शदीद था, जो मेरे बड़ों का है। महनूस इसी पोजीशन में बोली। सच नज़र झुका के नहीं, नज़र उठा के बोला जाता है। मिज़ाब ताहिर, वो लफ़ज़ चबा-चबा के बोला। मिज़ाब तड़प के रह गई, तहाँ बोली कुछ नहीं। तुम एक दफ़ा अपनी मामा से बात करो मिज़ाब, प्लीज़ ये सब ठीक नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं खुद नहीं लगता कि ये गलत है? तुम एक दफ़ा अपनी मामा से बात करके तो देखो, वो तुम्हारी माँ है, तुमसे ज़्यादा अज़ीज़ इन्हें कोई नहीं चीज़ नहीं। वो अपने नरमी से बोल रहा था। मैं मामा के फैसले से इन्हें हराफ करके इन्हें डिसहार्ट नहीं कर सकती। इसका अपना दिल पिघला था, लेकिन इसे यहाँ साबित कदम रहना था। वो जानती थी इसकी मामा हार्ट पेशेंट है। अगर इसने इन्हें ज़रा सी भी तकलीफ पहुँचाई तो इनके लिए ठीक नहीं होगा। और मुझे डिसहार्ट कर सकती हो? इसका नरम होता लहज़ा फिर तेज़ हो गया। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। वो इसे कैसे समझाती? वो तकदीर से नहीं लड़ सकती। इसने अपना फैसला अपने रब पर छोड़ दिया था। अगर इसकी किस्मत में हंसला हारून अहमद लिखा था, तो किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता, चाहे लाख सर पटक ले। जब अल्लाह ताला मिलवाने पर आता तो सारी दुनिया मिलकर भी इन्हें जुदा नहीं कर सकती। और अगर इसकी किस्मत में अज़मीर आदिल लिखा था, तो फिर हर हाल में इसे वही मिलना था। चाहे वो जितनी मर्ज़ी तदबीरें कर ले, अल्लाह ताला की एक तदबीर भी इन सब तदबीरों पर भारी होती है। बेशक ये तो है, जो आपके नसीब में लिखा हुआ, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतरीन चुना, वो आपको वही मिलता है। जिससे अपने छोटी से छोटी बात हद तक एक शख्स की तनाई और बेवकूफ़ी तक तकदीर में लिख डाली थी, तो क्या वो इसकी इतनी बड़ी बात से बेखबर था? वो यकीनन बाखबर था और इसे पहले से लिख चुका था। बस वो अपने रब से इतनी दुआ शुरू कर दी थी कि इसके लिए बेहतर फैसला करे। इसने अपना हर मामला इस पर छोड़कर दुआ का रास्ता निकाल लिया था। और जो सब रास्तों से वाज़िह था, साफ़ और रोशन पाकीज़ा रास्ता, इत्मीनान कल्ब वाला रास्ता। और अज़मीर आदिल के बारे में जानते हो? जो अनकरीब तुम्हारा मंगेतर बनने जा रहा है, वो किस कमाश का इंसान है? इसकी और अज़मीर की मंगनी की डेट फ़िक्स हो चुकी थी। हंसला इसीलिए ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। इसके दिनों रातें कहाँ बसर होती है, एक नंबर का करप्ट और फ्लर्टी शख्स है, वो गुज़ारा कर लोगे इसके साथ? इसकी मुसलसल खामोशी से तैश दिलाई थी, वो एकदम से अपनी जगह से उठा और इसके मुकाबले आते हुए एक झटके से इसका बाजू खींचकर इसे अपने सामने खड़ा किया। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? इसका लहजा नहीं, आज निगाहें भी सुलग रही थी। अगर तुम्हारी इस खामोशी का मतलब हाँ है, तो फिर इतना याद रख लो कि अगर धोखेबाज इंसान जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें छोड़ दे, तो पलट के मेरी तरफ मत देखना। मुझ तक आने के तमाम रास्ते को तुमने खुद ही मसदूद कर दिए। गुस्से में वो खुद भी नहीं जानता था क्या कुछ कह के एक झटके से इसका बाजू छोड़ते हुए लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया, जबकि मिज़ाब अपनी जगह सुन्न होकर रह गई। नहीं ओदा की कसूर है। आज आपके साथ किसी किस्म की कोई रायत नहीं होगी और हर सूरत आज आप हम वॉकिंग करेंगे। और अगर आपने कोई उज़र पेश करना चाहो तो मैं कोई ज़बरदस्त किस्म की सज़ा भी जारी कर सकती हूँ, अंडरस्टैंड? कपड़े प्रेस करते हुए मामा से मुखातिब थी, जो जाँचती निगाहों से इसे देख रही थी। तुम खुश तो हो ना मिज़ाब? न जाने क्यों कभी-कभी इन्हें ऐसा लगता कि इनका फैसला गलत था। पता नहीं मिज़ाब की आँखों में वाक़ई नमी रहती थी, इन्हें महसूस होती थी। बड़ी छेती ख्याल आ गया तेनू हैं बीबी? तू थोड़े जे होर बाद चुप कर लैंदी, ब्याह तो बाद पुछ लवीं तू खुश है कि नहीं खुश? तुर फिटे हूँ। मेरी प्यारी मामा, मैं अब हर बाहर सदर दरवाजे पर लिख के लगा देती हूँ, आई एम हैप्पी।
बस इस्त्री का प्लग उतार के घुटनों के बल इनके सामने बैठते बोली तो बेसाख्ता इन्होंने इसकी पेशानी चूम ली। मुझे तुम पर फ़ख्र है, वो अंदर तक सरशार हो गई। अब जल्दी से उठे, कपड़े चेंज करें, हमें खुशगवार शाम गुज़ारने जा रहे हैं। आयरन स्टैंड से इनके कपड़े उठाकर मैंने पकड़ाती हुई बोली तो मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। हेलो, क्या हो रहा है? अज़मीर की आवाज़ बेहद करीब से उभरी। तो वो उछल के मुड़ी। तुम कब आए? इसने हैरान होकर पूछा। इसे वाक़ई पता नहीं चला कि वो कब आए। अभी-अभी जब तुम मराकबे में मुझे सोच रही थी। वो सहूलत से इसका हाथ अपने हाथ में दबाकर पूछने लगा। अज़मीर प्लीज़, मुझे सब अच्छा नहीं लगता। इसने बर्क रफ्तारी से अपना हाथ वापस खींचा। मैंने इसीलिए मामा से कहा था मंगनी वगैरह के झंझट की बजाय शादी की डेट रख ले, मगर बुरा हो निदा के ससुरालियों को जो शादी की बजाय मंगनी की डेट रख के। वो बदमज़ा होके बोला। निदा और अजमीर की मंगनी एक साथ ही हो रही थी। निदा का अचानक ही प्रपोजल आ गया। वो शादी की डेट रखना चाह रही थी, लेकिन लड़के वालों के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। वो फिलहाल शादी की बजाय मंगनी पर रजामंद हुए थे, और पप्पा ने फिलहाल इसी पर शुक्र किया कि निदा की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। अरे अजमीर, तुम कब आए और खड़े क्यों? बैठो ना। मामा कपड़े चेंज करके आई तो अजमीर को देखकर फौरन बोली। आखिर वो इनका होने वाला इकलौता दामाद था। मुमानी में मज़ाक को लेने आया था कि अपनी पसंद से शॉपिंग वगैरह कर ले। अजमीर ने फौरन अपना मुद्दा बयान किया। अजमीर, आज तुम मामा के साथ वॉकिंग के लिए जा रही हो, तुम अपनी पसंद से ले आना, मैं कोई इतराज़ नहीं करूँगी। वो मामा के बोलने से पहले बोल उठी। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, मैं कोई और दिन रख लूँगा। वो इसकी चालाकी पर किलस के रह गई। था मामा के सामने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिलाने पर इत्तेफ़ा किया। इसके जाते में साहब ने सुक्का साँस लिया। शुक्र था मामा ने मुदाखलत दी कि वो खुद भी शायद घर बैठे-बैठे बोर हो गई थी। और फिर शाम इसने मामा के साथ बहुत एन्जॉय किया, बहुत सारी बातें की। अपने बचपन की लड़कपन की बेहद थक कर वो दोनों वापस लौटी थी। रात का न जाने कौन-सा पैर था जब किसी एहसास के तहत इसकी आँख खुली। जब से मामा की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, वो इनके बेडरूम में सोती थी। इसने गर्दन मोड़कर मामा की तरफ देखा तो एकदम घबरा के उठ बैठी। बेडरूम की लाइट ऑन की। मामा, मामा! इनकी रंगत तेज़ी से तब्दील हो रही थी। मिज़ाब के फ़ौरन हाथ-पाँव फूल गए। इसने जल्दी से बेड की साइड ड्रॉर से टैबलेट निकाल कर मामा के मुँह में डाली, लेकिन इनकी हालत सँभलने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। मामा आँखें खोले, प्लीज़ आपको कुछ नहीं होगा। इसके अपने हवास साथ छोड़ते जा रहे थे। मामा को वहीं छोड़कर फ़ौरन नीचे की तरफ लपके। थोड़ी देर बाद इनकी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ तेज़ी से जा रही थी। कॉरिडोर में टहल-टहल कर इसकी टाँगें शल होने लगी। फुप्पो, अंकल और अज़मीर इसके साथ थे। "बैठ जाओ बेटा, थक जाओगी।" इसे मुसलसल टहलता देखा आदिल अंकल ने कहा। इसी वक़्त आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर्स को बाहर आते देख वो इनकी तरफ लपकी। "टेक इट ईज़ी बेटा।" डॉक्टर ने इसे तसल्ली दी। आदिल अंकल और अज़मीर भी आ गए। पेशेंट के दिल के दोनों वॉल्व्स ने काम करना छोड़ दिया। हम अपनी सी कोशिश तो करें कि इनका हार्ट सही वर्किंग करना शुरू कर दे। फिलहाल तो इन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, बाकी आप अल्लाह से दुआ करें। डॉक्टर रमीज़ अब आदिल अंकल को तफसीलात बता रहे थे। मिस आपका तो एक-एक लम्हा दुआ बन के गुज़रा था, सब इसका हौसला बढ़ा रहे थे, पर न जाने को इसका दिल बैठता जा रहा था। 2 दिन बाद मामा को आईसीयू से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अब इनकी हालत पहले से कदरे बेहतर थी। मिज़ाब, इधर आओ बेटा। इस वक़्त हॉस्पिटल में सिर्फ वही मामा के पास थी। आदिल अंकल और अज़मीर तो बस दिन में बस एक दफ़ा ही चक्कर लगाते, अलबत्ता पप्पो कुछ देर इसके पास रुक जाती। आजकल तो निदा और महक भी इसे कंपनी देने आ जाती थी। जी मामा। वो आहिस्ती से चलती हुई इनके बेड के करीब बैठ गई। मामा काफ़ी देर खामोशी से इसे तकती रही। कुछ कहना मामा? इसने नरमी से इनका हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए पूछा। वो जैसे किसी गहरे ख्याल से चौंकी। पता नहीं क्यों मज़ाक, मुझे ऐसा लगता है जैसे अब ज़िंदगी के दिन पूरे होंगे। मामा? इसने तड़प कर नम नज़रों से इन्हें देखा। तकदीर के फैसले तो अटल होते हैं बेटा, तुम अपना दिल बड़ा करो। हाँ, आज मैं चंद अहम बातें तुम्हें बताने जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि इस राज़ को सीने में लेकर ही दफ़न हो जाऊँगी, लेकिन फिर ये ख़्याल है कि अगर बाद में तुम्हें इल्म होगा तो न जाने तुम अपने वालिदैन के बारे में क्या सोचो। और दूसरा, न जाने तुम्हें किस रंग में ये हर बात बताएँ, लिहाज़ा बेहतर यही कि तुम इसे मेरी ज़ुबानी सुन लो। मामा की इतनी लंबी तमहीद पर इसने उलझ कर इनकी तरफ देखा। आखिर वो कौन-सी ऐसी बात थी जिससे वो लाइलम थी? कुछ देर चुप रहने के बाद वो गोया हुई। दरअसल जब मेरी और तुम्हारे पापा की शादी हुई तो शादी के अरसे बाद हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई। मैं और ताहिर परेशान ज़रूर थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से पुरुम्मीद थे। 6 साल का अरसा गुज़र गया तो आपा बेगम ने हम दोनों को चेकअप करवाने का मशवरा दिया। चेकअप के बाद जो रिपोर्ट सामने इनके मुताबिक मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। सदमे से मेरा बुरा हाल था। ताहिर अगरचे मुझे तसल्ली देते, लेकिन आखिर वो मर्द थे और फिर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद। मैंने इन्हें दूसरी शादी करने का मशवरा दिया तो मुझे डपटने लगे। आपा बेगम को पता चला तो फ़ौरन चली आई। फिर आपा बेगम ने मशवरा दिया कि हम कोई तो बच्चा अडॉप्ट कर लें। मैं ज़ाब बुरी तरह चौंकी। हमारी एक दूर की रिश्तेदार थी जिनसे हमने एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, जिसका नाम ताहिर ने मिज़ाब रखा। एक बम था जो मिज़ाब के सर पर फूटा था। वो फटी-फटी निगाहों से मामा को देखती रही, लेकिन ये सब आपा बेगम की वजह से मुमकिन हो सका था। इन्होंने हमें दिलासा दिया, हमारी हिम्मत बढ़ाई थी। मैं सारी ज़िंदगी में इनका कर्ज़ नहीं चुका सकती। तो ये था वो आड़ा वक़्त जब फुप्पो ने मामा-पापा की मदद की। कई बार मैंने चाहा कि तुम्हें सब बता दूँ, लेकिन फिर ये बात आड़े आ गई कि तुम्हारा रद्द-ए-अमल न जाने कैसा हो, तुम मुझे छोड़कर ही ना चली जाओ। मैं तुम्हारी बेइत्तेनाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हारी फुप्पो ने भी इस राज़ को राज़ ही रखा। यही वजह थी कि हम अपने दूर-दराज़ के रिश्तेदारों से ज़्यादा मिलते-जुलते नहीं थे। मुबादा तुम्हें इस बात का इल्म ना हो जाए। और यही वजह थी कि मैं आपा बेगम की किसी बात से इख्तिलाफ़ नहीं करती। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने इनकी किसी बात से इख्तिलाफ़ किया तो वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे और तुम्हारा हर रिश्ते से एतबार उठ जाएगा। लेकिन उन्होंने कभी मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई। और जब हंसला का प्रपोज़ल तुम्हारे लिए आया तो न जाने क्यों एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम हंसला में इंटरेस्टेड हो। इस वक़्त पहली दफ़ा मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि जब तुम्हें पता चलेगा मैं तुम्हारी सगी मामा नहीं, तो शायद तुम ये सोचने लगो कि अगर तुम्हारी सगी मामा होती तो वैसे नहीं करती।
میں نے فیصلے کا اختیار تمہیں دیا مذاق، تمہیں جو اپنے لیے بہتر لگے وہ فیصلہ کرو، اگر حنزلہ تمہاری پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپا بیگم سے معذرت کر لوں گی۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے ان کی سانس تیز ہو گئی، وہ لہجہ بھر آ گیا۔ ماما، مس آپ ان کے سینے پر سر رکھ کر سسک اٹھی۔ آپ میری ماما، میں نہیں جانتی کہ اس عورت نے مجھے جنم دیا، میں تو صرف اتنے سے جانتی ہوں جس نے انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا، میری تعلیم و تربیت کی، اور مجھے آپ کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں ماما۔ اگر پھپھو آپ کو عزیز ہے تو مجھے بھی، آپ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا مجھے وہ دل سے قبول ہے، اور میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی، نہ ہی آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گی۔ اس کی سسکیاں مسلسل جاری تھی، اس لمحے کتنا مان بڑھ گیا تھا ان کے چہرے پر، اور کیسا پرسکون ہو گیا تھا ان کا چہرہ کسی بھی خوف سے آری۔ مذاق، تم نے میری بے چینی ختم کر دی، میرا مان بڑھا دیا تم نے، مجھے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے، میں سکون سے تمہارے پاپا سے مل سکوں گی۔ انہوں نے نہایت پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی۔ ماما، مذاق نے چیخ کر انہیں پکارا، لیکن پرسکون نیند سو چکی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اوئے ہوئے، ایڈی پیڑی ہوئی، ہن اصل معنی دے وچ رلے گی بیچاری۔ وقت نے آہستہ آہستہ اس کے زخم منتقل کرنے شروع کر دیے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی کسی حد تک اپنی روٹین پر آتی جا رہی تھی۔ ماما کی ڈیتھ کی وجہ سے پھپھو نے منگنی کا فنکشن آگے کر دیا، اسمیر کو کسی ضروری کام کے سلسلے میں دبئی جانا پڑا تھا، اس کا اصرار تھا کہ جانے سے پہلے واپسی پر وہ رخصتی کروا لے، جانے سے پہلے نکاح و واپسی پر رخصتی کروا لے گا۔ رخصتی اس کی کیا ہونی تھی، بس ایک فارمیلٹی پوری کرنی تھی، کیونکہ ماما کی ڈیتھ کے بعد وہ پھپھو کے پورشن میں آ گئی تھی۔ پھپھو نے رسمی طور پر اس کی رائے لینا چاہیے، اور ازمیر کی بجائے حنزلہ کا نام لے کر اپنی مری ہوئی ماں کے لیے تانا نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس کا اور ندا کا نکاح ایک ساتھ ہونا طے، پر رخصتی ازمیر کی واپسی پر۔ لو بھلا اس لڑکے کا کوئی حال ہے، گھر میں ہزار کام اس کے منتظر، سب چھوڑ چھاڑ نہ جانے رات سے کہاں غائب ہے۔ ازمیر کو ابھی تک خیر حاصل پا کر پھپھو مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ مزاب اور ندا بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ چکی تھی، سدا کی سادہ رہنے والی مزاب ڈارک میرون لہنگے میں غضب ڈھا رہی تھی، جو بھی دیکھتا ایک دفعہ ٹھٹک کے رہ جاتا۔ آپ فون کر کے پتا کریں ازمیر کہاں رہ گیا، ندا کے سسرال والے آنے والے، رسم شروع ہونے کا وقت ہو رہا ہے۔ پھپھو پریشانی کے عالم میں عادل انکل سے مخاطب تھی۔ ہزار دفعہ ٹرائی کیا، اس کا موبائل آف ہے، وہ بھی سچ جھجلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ یا اللہ خیر ہی کرنا، انہیں تو ہال اٹھنے لگے، ندا کے سسرال والے آ چکے تھے، لیکن ازمیر ہنوز لاپتہ تھا۔ فون کی بیل پر عادل انکل لپک کے فون کی طرف بڑھے، دوسری طرف نہ جانے کیا کہا جا رہا تھا کہ ان کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مرے ہوئے ہاتھوں سے ریسیور کلیڈر پر ڈالا۔ کیا ہوا، کس کا فون تھا؟ پھپھو نے بے قراری سے دریافت کیا۔ ازمیر ہاسپٹل میں اس کی ٹانگ میں گولی لگی ہے۔ پھپھو تو بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی۔ کیسے لگی گولی، کس سے لڑائی ہوئی تھی؟ ایک دم مختلف آوازیں ابھرنے لگی۔ عادل انکل گول مول سے جواب دے کر گاڑی اڑا کے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ لوگوں میں چہم گوئیاں ہونے لگی، آخرکار اصل بات بھی سامنے آ گئی۔ نواب حسین چغتائی اور ان کی مخالف پارٹی کی زبردست لڑائی ہوئی تھی، دونوں طرف سے شدید فائرنگ ہوئی۔ چغتائی گروپ کے 4 افراد جبکہ مخالف پارٹی کے 10 افراد مر گئے۔ ازمیر چونکہ چغتائی پارٹی میں پیش تھا، لہٰذا نواب حسین چغتائی خود تو موقع پا کر کھسک گئے، اس مارکے کا سارا خمیازہ ازمیر کے سر ڈال دیا۔ ازمیر چونکہ زخمی ہو چکا تھا، اس لیے فرار نہیں ہو سکا، اور پولیس وہاں پہنچ گئی۔ فی الحال تو اسے ہاسپٹل میں رکھا تھا ٹریٹمنٹ کے لیے، لیکن قانونی کارروائی ہونی تو نہایت سخت ہونی تھی، کیونکہ نواب حسین چغتائی نے خود کو بچانے کے لیے بیان سراسر ازمیر کے خلاف دیا، اور ہلاکت شدہ افراد بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے۔ ندا کے سسرال والے کانوں کو ہاتھ لگاتے واپس چلے گئے، ایک ایک کر کے سب مہمان رخصت ہونے لگے۔ میزاب، تم ہمیں معاف کر دو، ہم جو تمہارا ناحق مال کھاتے رہے، شاید یہ اس کی سزا ہے۔ پھپھو روتی کٹلاتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ پھپھو پلیز ایسے مت سوچو، جو بھی تھا پھپھو کی حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اللہ، پھپھو نے بھی غیرت آ گئی، منٹ دے وچ ہی۔ تسنیم اور چاہر کو بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے ہم نے اس لیے مجبور کیا کہ اگر طاہر نے دوسری شادی کری تو اس کے بچے جائیداد کے وارث بن جائیں گے، جائیداد کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے میں نے اسے ایسا کرنے پر اکسایا، پھر اس بات کا اسے بھی احسان بھی جتلایا اور خوب فائدہ بھی اٹھایا، ہر جائز ناجائز بات منوائی، اپنے بھائی کی وفات کے بعد ایک پیسہ تک تسنیم کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرا، بلکہ الٹا بہانے بہانے سے پیسے نکلواتی رہی۔ لیکن تسنیم نے کبھی اف تک نہیں کی، حتیٰ کہ جب تمہارا رشتہ ازمیر سے جوڑا جھوٹ بول کے تب بھی نہیں۔ طاہر نے کبھی تمہارے اور ازمیر کے رشتے کی بات نہیں کی تھی، ہم نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا تھا، مجھے معاف کر دو بیٹا، ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ بیٹی کے سسرال والے واپس چلے گئے، بیٹا پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ فصیحہ بیگم نے ایک مرتبہ پھر تمہارے لیے اپنا دامن دراز کیا اور میں نے ہاں کر دی، میں نے تم دونوں کا دل دکھایا تھا، شاید یہ اس کی سزا ہو سکتا ہے اس طرح کر کے اس کی کچھ تو لافی ہو جائے اور یہی نیکی میرے کام آ جائے۔ پھر ہاشم نے بھی کہا کہ وہ ازمیر کے لیے کوشش کرے گا۔ پھپھو کی باتیں سن کے اسے اپنا دماغ پھک سے اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، شاید آج انکشافات کا دن تھا۔ پھپھو کب کمرے سے گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ اللہ، پھپھی بیگم ہی 900 چوبے کھا کے حاجی نو چلی۔ دیکھ لو، جذبے سچے ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ لائبہ اس کے پاس آ کے بیٹھی تو وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ اگر وہ دھوکے باز شخص زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں چھوڑ جائے تو پلٹ کے میری طرف مت دیکھنا، میری طرف آنے کے تمام راستے تم نے خود ہی مسدود کر دیے۔ آگ برساتا لہجہ اس کی یادداشت میں محفوظ تھا۔ نہیں لائبہ آپی، حنزلہ نہیں، آپ منع کر دے پلیز۔ وہ اتنی بھی عرصہ تھی کہ اتنی تذلیل کے بعد اسے رجوع کرتی۔ آخر اس کی بھی عزت نفس تھی۔ لائبہ نے حیرت کی شدت سے اسے دیکھا اور اس کا انکار حنزلہ تک بھی پہنچ گیا۔ وہ تن فن کرتا اندر داخل ہوا۔ مسئلہ کیا تمہارے ساتھ، تم خود کو عقل مند سمجھتی ہو؟ وہ شعلہ بار نگاہوں سے گھورا تھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، اس نے بھی انا کا پرچم بلند رکھا۔ تم؟ وہ تو کوئی آگ کے دہانے پر آ بیٹھا۔ سیدھے طریقے سے نکاح کروا لو، ورنہ گن پوائنٹ پر بھی کروا سکتا ہوں۔ اس کے وجود سے تو آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھی۔ مزاق کے ساتھ ساتھ لائبہ بھی سہم گئی۔ آدھے سے پتہ چلا وہ غصے کا کتنا تیز ہے۔ باقی ساری کاروائی کیسے بھی، کون آیا کون گیا، ازمیر کا کیا بنا، نیدا کا رد عمل کیا، وہ پھپھو کس حال میں تھی، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ ہوش تو تب آیا جب لائبہ سے حنزلہ کے کمرے میں بٹھا کر باہر جانے لگی۔ آپ ہی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کے دونوں ہاتھ تھام کے وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس ہو جاؤ۔
اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے باہر نکلتی جس وقت اس نے کمرے میں قدم رکھ کر کھڑی 3 بجا رہی تھی. ڈارک میرون لہنگے میں سجی سبری روئی روئی آنکھوں سے میں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ہنسلا کو اپنا سارا غصہ ایک سیکنڈ میں اڑن چھو ہوتا محسوس ہوا. گلا کھنکارتے ہوئے اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا. اتنے عرصے بعد وہ سامنے آئی تھی. نگاہوں نے بے اختیار تو ہونا ہی تھا اور اب تو وہ حق بھی رکھتا تھا. اس کی محبت کو میسج ٹون نے توڑا تھا. اس نے چنچلا کر موبائل کو دیکھا پھر میسج اوپن کیا. ہاشم نے اسے شیئر بھیجا تھا. نہیں بے حجاب و چاند سا کے نظر کا کوئی اثر نہ ہو. اس سے اتنی گرمئی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو. وہ کہکا لگا کے ہنس پڑا. مذاب نے حیرت سے اسے دیکھا پھر خفگی سے رخ پھیر لیا. ارے آج کے دن تو ناراضگی مت دکھاؤ. موبائل سائڈ پر اچھالتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا. خود ہی تو کہا تھا میری طرف لوٹ کے مت آنا اور بعد میں خود ہی زبردستی بھی کی. وہ منہ پھلا کے بولی تو ہنسلا کو اس پر ٹوٹ کر پیار ہے. وہ تو میں ہی غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ بول گیا تو تم سنجیدہ ہوگی. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. یہ بھی اچھی بات ہے. پہلے جو مرضی میں آئے کہہ لو بعد میں یوزر پیش کر دینا. میں تو غصے میں تھا. وہ کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھی. دیکھو نا جیسے انسان کبھی کبھی نیند میں بے اختیار ہو جاتا ہے ویسے غصے میں بھی تو ہو سکتا ہے. مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا. وہ میں تو بس اس کا اشارہ سمجھ کے بری طرح بکلائی. گل تو صحیح کی تھی انہوں نے. میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ جو لڑکی اتنی جرأت مند ہو سکتی کہ بھری محفل میں میرے سینے سے لگ کے سو جائے نہایت کرو فرض سے میرے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اسے زندگی میں شامل کر لینے میں کیا حرج ہے. میں آپ کے سینے سے لگ کے نہیں سوئی تھی. وہ ویسی بھی نیند میں مستغرق نہیں تھی کہ اس کندھے اور سینے کے درمیان فرق نہ کر سکتی. اس بات پر ہنسلا نے جاندار کہکا لگا. آج تو سو سکتی ہو نا. اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شوخ لہجے میں بولا تو اس کے آسان خطا ہو گیا. پتہ ہے ہاشم بھائی نے پورا پلان بنایا ہوا تھا آج ازمیر کو گرفتار کرنے کے لیے لیکن دیکھ لو ہم جو اس کی غیر حاضری پہ پریشان ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر بے ساختہ کہہ اٹھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب تدبیروں پر بھاری ہے. اس کی کلائی میں بریسلٹ پہناتے ہوئے اسے بتا رہا تھا اور میں سورسی سے سنتے ہوئے سوچ رہی تھی. جب اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیریں لکھ دیتے تو پھر انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ملوا دیتا. ان کی قسمت پہ ایک دوسرے کا جوڑ لکھا تھا تو انہیں ہر حال میں ملنا تھا. اگر وہ پہلے اتنا بے صبرا پن دکھاتی تو نہ جانے کتنے دل ٹوٹ جاتے اور ایک کسک ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں رہ جاتی. اس نے دعا کا راستہ اختیار کیا جو بلا کر مستجاب ہو گئی تھی. اور اپنے والدین کے سامنے بھی سرخرو رہی اور اپنے رب کے سامنے بھی. انسان کو ملتا وہی ہے جس کی قسمت میں درج ہوتا ہے. نیدا کی قسمت میں عالیان کا ساتھ نہیں تھا تو کیسے ان موقع پر سب کچھ بکھر گیا اور اس کی قسمت میں ہنسلا کا ساتھ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ملوا ہی دیا. وہ بڑا مسبب الاسباب ہے. ہنسلا کو دیکھتے ہوئے یہی فکر اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک یہ تو حقیقت ہے. جو چیز اللہ پاک نے نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ تو ہوتی ہے. اور دوسری بات اللہ پاک بہترین پلانر ہے. اللہ تعالیٰ کے منصوبوں پہ نہیں ہم جا سکتے. جو اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے نا وہ بہترین ہوتا ہے. انسان کو اچھے برے کا کیا پتا. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول آج کا اپنے اختتام کو پہنچا. ہلکا پھلکا ناول اچھا تھا. آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف دین ویڈیو اینڈ کریں گے. ریبا اقبال زبردست. تھینک یو ریبا اقبال. زینب ساگر نے دل بھیجے. تھینک یو زینب. شہزاد پھٹی ملکہ اور ارمان کو بھی ٹھیک سبق ملا. جی بنتا تھا. تھینک یو مسز شہزاد. شہزاد پھٹی شارع فیصل لاہور والی ہے کراچی والی ہے تو ہن میں نہیں پتا. سیدہ ریزا بلال اچھی تھی ایپیسوڈ لیکن ضامن آل ٹائم وغیرہ فل ٹو فل. مطلب یار ایموشنل بلیک میل کر کے معافی مانگ رہا ہے اب ایک دم سے میری جان. صحیح کہا ہیروئن نے جب مارتا تھا تب محبت کہاں سے آیا تھا. بڑا بچپن میں محبت کرتا تھا. لعنت ماریا ہویا ਇੱਥੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਗਾਟਾ ਛਿੱਤਰ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਠਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੀ ਇਸਕੋ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਲੀਜ਼ਾ. سیدہ علیزہ بلال امیزنگ ناول نائس اینڈنگ. اچھا تھا مزہ ہے. سارا ناول ظالم بنا اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ایک دم چھچورا ہو گیا. بے شک معاف کرنے والے اللہ پسند کرتا ہے. حرین نے بھی یہی کیا اور اس کا صلہ بھی مل گیا. آسانیاں آگے آسانیاں ہی ہیں. بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہر مشکل کے بعد نہیں ساتھ ہوتا ہے. ضامن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور شرمندہ اور آئندہ بھی نہیں کرے گا اس چیز کا وعدہ بھی کیا. اور اسی طرح اللہ پاک نے مشکل وقت کو وسیلہ بنایا ہدایت کا اور اللہ نے ہدایت دی. اینڈنگ بہت اچھی ہوگی. جی یہ تو ہیپی اینڈنگ ہوگی لیکن ادھر دے بندیاں نے نا چھتر پریڈ ہونی چاہیے ایک باری. تھینک یو لیزا. رابیل سپتین بٹ نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو رابیل بٹ. شہزاد ہی ایٹ سلو پوائزن ان کافی. ہو سکتا ہے میں یاد ہی نہیں. تھینک یو مسز شہزاد. سائم بھائی وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ زبردست ناول مزہ آ گیا. تھینک یو ویری مچ سائم وحید. شہزاد بھٹی بہت اچھا ناول ہے. ویری گڈ اسٹوری لائن. تھینک یو مسز شہزاد. شہزاد بھٹی اس کی اسٹوری کے سٹارٹ میں ایک انڈین مووی ہے سیم اٹ از یوز کیا. اچھا مجھے نہیں پتا. میں موویز دیکھتی ہوں لیکن میں ٹالی ووڈ کی دیکھتی ہوں. مجھے یہ بھی نہیں یاد آ رہا آپ ناول کی کون سی بات کر رہی ہیں کون سے ناول کی.
مجھے پہلے بھی کسی نے بولا تھا، میں دیکھ کے آئی ہوں ابھی کون سے ناول کی بات کر رہی ہیں. تھینک یو مسز شہزاد. زوبیہ ریحان اٹ واز گڈ ناول اور سوسائٹی از ویری کرول فار ویڈیوز اینڈ ڈیورسز. صحیح، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایسے ہی ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. تھینک یو زوبیہ ریحان. عامرہ طفیل نائس ناول بس نشرہ سے زباریہ کے اور ساتھ ہی زباریہ دانیال واقعی میں ایک بہت بڑا جھٹکا تھا. بیچارے دانیال کو ساتھ روڈ بہیو کر کے زباریہ نے غلط کیا. رائٹر دانیال کے کریکٹر کو ایز ایموشنل سپورٹ بھی لکھ سکتی تھی اور یقیناً ویسے زیادہ مزہ آتا. اس طرح ہیرو ہیروئن کے سینز بھی کم تھے اور جو تھے وہ آف تھے. چلے ہیپی اینڈنگ ہوگی. صحیح بات ہے، ان کے آپس میں سینز کم ہی تھے. تھینک یو عامرہ. موسیٰ سعید ریچ بہت برا لگتا ہے گلاس ڈور ہیں وہ جڑا من ٹھا کر کے بجیا سی. ہائے کی دساں، واقعی بہت برا لگتا. موسیٰ سعید میں نے لاسٹ میں سن لیا ہے دی جب سے آپ نے کہا ڈیلی سنتی ہوں. تھینک یو ویری مچ موسیٰ سعید، آپ ڈیلی سنتی ہیں تو بہت شکریہ. سمیار شیخ بیسٹ ناول. تھینک یو سمیار شیخ. میوزک لائف امیزنگ. تھینک یو میوزک لائف. سحر اشفاق وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت زبردست ناول. تھینک یو ویری مچ سحر. میوزک لائف بہت زبردست. جو ڈیوورس والا پارٹ تھا نا، میں نے ایک پیج پہ پڑھا تھا، سوچا تھا اس کا نیم پتہ چلے تو وہ سنوں گی، بٹ آپ نے پہلے پڑھ لیا. تھینک یو سو مچ. اسٹے بلیسڈ. ویلکم ڈیئر. تھینک یو ویری مچ فار یور لولی کمنٹ. میوزک لائف. شہزاد بھٹی ایک فرمائش ہے سبب حب بائے رافیہ عزیز. میں چیک کرتی ہوں، اگر تو ڈائجسٹ والا چھوٹا ہے تو پھر پڑھتے ہیں، اگر نہیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. سائم وحید وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست ناول، زبردست وائس. تھینک یو سائم وحید. انیس بانو زبردست نائس بہترین سٹوری. تھینک یو ڈیئر. ویلکم. تھینک یو انیس بانو فار یور کمنٹ. شہزاد بھٹی مطمئن بغیرت تھا اس کا باپ. صحیح بات ہے. تھینک یو مسز شہزاد. زینب سجاد گریٹ سٹوری دی یار. تھینک یو زینب. شہزاد بھٹی ریچ کا ناول پلیز. جی ضرور. میوزک لائف بہت ہی زبردست ہے، لڑکیوں کو تو اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. تھینک یو میوزک لائف. چودھری جٹ بہت اچھا ایپیسوڈ تھا. تھینک یو چودھری جٹ. میوزک لائف بیٹر ریالٹی آف سوسائٹی. باقی ناول اچھا تھا. تھینک یو میوزک لائف. ندا جعفر پلیز ریڈ حاصل عشق بالی زایت. اگر پرمیشن ملی تو ضرور. زینب سجاد بہت بڑی یہ ریالٹی ہے، بیوہ کے لیے زندگی بہت مشکل ہے، لیکن رائٹر کو اینڈ میں اور بھی لکھنا چاہیے تھا، مطلب ان لوگوں کے ساتھ بھی کچھ برا کرتی نا. صحیح بات ہے، اس چیز سے تو میں ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں. تھینک یو زینب. فرزانہ چودھری تھینک گاڈ آج پورا ہوا. آپ گاجی ہو کیا؟ تو کیسا لگا آپ کو ناول؟ تھینک یو فرزانہ. شہزاد بھٹی ہو عشق کا روگ منڈا پاگل کر دیتا. صحیح گل ہے. تھینک یو مسز شہزاد. ردا فاطمہ پورا ناول ایک طرف اور آپ کی باتیں ایک طرف، بہت مزہ آتا ہے آپ کی باتیں سن کے. تھینک یو ویری مچ ردا فاطمہ. ردا فاطمہ ردا فاطمہ سے مجھے یاد آیا، آپ جب میں چھوٹی تھی نا، مطلب میں 5th کلاس میں تھی شاید، نہیں میں پتہ نہیں کون سی کلاس میں تھی، وہ بچی بھی 5th میں تھی. ردا فاطمہ میں میرا خیال میٹرک میں تھی شاید. تو وہ آتی ہوتی تھی آپ ہی کے پاس اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے. تو جب بھی اسے پوچھنا نا کام کر لیا ردا، ٹیچر کار رہی ہوں، تو بہت سلو بچی تھی، تو وہ ابھی کبھی یاد آ جاتی ہے. تو آپ کا نام پڑھ کے مجھے وہ یاد آ گیا، وہ بھی ردا فاطمہ تھی. تھینک یو ردا فاطمہ فار یور لولی کمنٹ. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسے لگا آپ کو آج کا ناول بتائیے گا ضرور. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد